दे दो। नो। I guess good evening. Am I audible? Yes, sir. Good Yes, evening, sir. sir. Audible. So guys, how is the Joes? Date have announced the 18th December, right? It's 18th December, no? Yes, sir. Yes, sir. All the best, guys. One second. Okay, the last class, what we have discussed, right? So मैंने एक assignment दिया था. How many of you have sent me the mail? Only I think Atul have sent it to me. And what about the rest of you guys? किसी ने नहीं भेजा. लिखा नहीं या भेजा नहीं आप लोगों ने?
Oh, it's 30. Yes. Okay, now it's 30, so we should start now. In last classes, we have discussed 4 questions, right? That I've already asked. Yes, sir. Okay, so in the last classes, I've given you guys, assignment. Maybe you didn't send it to me, but at least just try to write on it. Maybe the product will be different or the composition will be different, but at least you got an idea how to write about it. So, नहीं भेजा, that's okay. It's your call. So जिसने भी मुझे भेजा है, I just go through it. मैंने check किया है. ठीक है. No. So today we'll discuss 5 or 6 questions. I'll try to sort it out. So the first question, I think ये सब आप लोगों ने देख लिया होगा this questions, huh? Previous year questions paper. The question was, you have a DSLR camera with a kit lens. Suppose you want to shoot the bottom of a glass bottle. List 2 different ways of doing it by the camera placement with respect to the bottle, and the second is the creatively positioning the bottle. Draw a sketch. Sketch ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि आपको स्केचिंग नहीं आती है तो उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे, बट एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया फॉर इट. स्केच के कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, इन क्वेश्चंस लिखा हुआ रहता है, देयर इज नो मार्क फॉर स्केच, सो डोंट गो थ्रू इट कि आपको स्केचिंग नहीं आती है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे. So before writing an answer, the first thing is read your question twice. यहाँ clear ऊपर लिखा हुआ है, you have a DSLR camera with kit lens. Most of the camera that comes with the kit lens is which lens? If we are talking about the kit lens, it's the 1855, right? जितने भी kit lenses आते हैं, most of the time you can say that कि नहीं zoom भी तो आता है, but basic kit lens की अगर बात करोगे, most of the camera is comes with 1855, right? And that 1855 have a certain problem. I'm not talking about the in terms of quality. Quality की बात नहीं हो रही है यहाँ. वहां पर एक प्रॉब्लम होती है, once you change your focal length, right? तुम्हारा aperture change हो जाता है. Everyone have faces this problem with the kit lens. Once you are on 18 mm, at that point of time, your aperture will full up in like 3.5. Once you are on 55, it's become 5.6. तो वंस इस क्वेश्चन में इसलिए किट लेंस मेंशन किया हुआ, ये कुछ भी लिख सकता था ताकि आपको किट लेंस का फीचर्स पता हो कि मोस्ट ऑफ द किट लेंस हैव द दैट प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड लेंस रैंपिंग. ये लेंस की प्रॉब्लम होती है, इट्स कॉल्ड द लेंस रैंपिंग. जैसे ही आप जूम करोगे दैट्स बिकम 5.6. तो सपोज यू वांट टू शूट ऑन 4, इफ यू राइट दैट दैट्स 55 mm यू विल शूट, तो वो पता चल जाएगा कि आपने किट लेंस यूज नहीं किया है. Okay, so here we started. Okay, the first things before shooting any product, कि आप कोई भी product shoot करें, the first things must be the clean surface. आपका जो भी product होगा या आप जहां आप shoot करें, it must be clean, right? In terms of bottle में सबसे problems क्या होती है, once you touch it, आपके marks रह जाते हैं, right? आप जहां भी touch करोगे, जूम करके चेक करोगे, मैग्नीफाई करके चेक करोगे, यू विल सी दैट देयर इज अ मार्क्स ऑन द बॉटल और ग्लास. और खास करके जब बैकलाइट होगी उस पे तो मार्क्स और ज्यादा दिखते हैं. सो योर हैंड्स के, आपके फिंगर्स के, जैसे भी आप टच करोगे वो दिखते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर डूइंग, इफ यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, वी डोंट यूज ओनली वन, वी हैव 5 or 6 प्रोडक्ट्स. सो हम देखते हैं सबसे ज्यादा क्लीन कौन सा है. Like suppose you have to shoot any beer bottle or any bottles, any kind of bottles, right? So what we can do, we didn't choose the one bottles, we just choose 5 or 6 bottles. So out of that हम 2 या 3 bottles उससे निकाल के रखते हैं कि जिस पूरा clean हो, surface clean हो. And for the placement you have to touch the bottles. Okay, professionally will use there is a gloves. Okay, कि आप ग्लव्स यूज करते हो जिससे क्या होता है, मार्क्स नहीं छूटते, बिकॉज आपके हैंड्स में पसीने होते हैं, स्वेट होता है, सो वो मार्क्स वहां छूट जाते हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग ग्लव्स. और अदर नहीं है वो, तो व्हाट वी आर यूजिंग, हम एक प्रोडक्ट यूज करते हैं फॉर द प्लेसमेंट, फॉर द लाइटिंग,
एक बार प्लेस हो गया तो प्लेस करने में जहां भी आपने टच किया, बहुत जगह टच करोगे, यू जस्ट रोटेट इट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, द मेनी टाइम्स यू हैव टू टच इट, सो उसमें बहुत सारे मार्क्स छूट जाते हैं, राइट? सो व्हाट वी कैन यूज, वी हैव द अनदर वन, जब आपकी पूरी फ्रेमिंग हो जाती है, एट द लास्ट वन बिफोर क्लिकिंग वी प्लेस अनदर बॉटल्स, जो बॉटल्स की बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, यूज ग्लव्स और सम टिश्यूज, जिससे क्या करते हो, होल्ड करके रख लेते हो। बट इन टर्म्स ऑफ अगर आपके पास दूसरा बॉटल नहीं, आप सपोज यू हैव ओनली वन बॉटल्स, तो ट्राई टू यूज वेटेड टिश्यूज और पेपर, थोड़ा वो करके कॉटन से या किसी ऐसे कपड़े से कभी मत धोना अगर पूछना, बिकॉज क्लॉथ में क्या होता है, डस्ट लगा हो सकता है, राइट? सो ट्राई टू यूज पेपर और सम टिश्यू पेपर कि जिससे आप उसे क्लीन कर सकते हो। द अनदर थिंग्स, द वैक्यूम इज, जो स्मॉलर वैक्यूम आता है ना, जो आपके कैमरे के किट क्लीन करने के लिए, या कैंड एयर वाले जो आते हैं जिसके स्प्रे काफी हार्ड होता है, जिससे एयर काफी हार्ड निकलता है, यू कैन यूज दैट थिंग्स टू रिमूव द द डस्ट इफ देयर इज अ डस्ट ऑन योर बॉटल्स, बिकॉज जब लाइट आप ऑन करते हो या बाकी इक्विपमेंट्स आप रखते हो, कोई ग्रिड आपने खोला, तो जो भी लाइटिंग इक्विपमेंट्स आप यूज करोगे, ट्राई टू कि वो भी क्लीन हो, कम से कम उसके जो डिफ्यूजर हो, बाकी चीजें, उस पर बहुत ज्यादा डस्ट ना लगा हो। सो इट मस्ट बी क्लीन, बिकॉज उसके भी डस्ट आएंगे तो उनके आपके प्रोडक्ट पे आ सकते हैं। तो बिफोर क्लिकिंग चेक इट आउट बाय मैग्नीफाइंग इट। नॉर्मली फ्रेम में हो सकता है कि एक छोटा सा मार्क्स आपको नहीं दिखे, दैट विल नॉट विजिबल, सो ट्राई टू मैग्नीफाई इट। आप हर एक कैमरे में ऑप्शंस होता है, यू कैन मैग्नीफाई इट एंड जस्ट रीड द ईच एंड एवरी स्पॉट, कि हर एक स्पॉट को आप क्लियरली देखते हो, तो कहीं पर भी मार्क्स है, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, ट्राई टू रिमूव इट। तो वन पॉइंट इज देयर मस्ट बी द क्लीन सरफेस, इट मींस योर प्रोडक्ट जो आपका हो क्लीन हो, क्लियर हो, राइट? कि आपके प्रोडक्ट पे कहीं से कोई दाग नहीं हो, कुछ लगा हुआ नहीं हो या डस्ट ना हो, बिकॉज वो क्लियर दिखेगा पोस्ट में आपको। द सेकेंड इज इन क्वेश्चंस दे क्लियर्ड इट कि बॉटम ऑफ द बॉटल क्लिक करना है, राइट? तो जब बॉटम ऑफ द बॉटल क्लिक करना है, इट मस्ट बी कि पूरा बॉटल दिखना चाहिए। पूरा बॉटल दिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू नीड अ ग्रेट डेप्थ ऑफ फिल, राइट? कि तुम्हें डेप्थ ऑफ फिल ज्यादा चाहिए, तो तुम शायद बॉटल का साइज होगा, सो इट विल बी लेइंग डाउन और समथिंग, जो भी आपने एंगल चूज किया है, सो देयर मस्ट बी द ग्रेट डेप्थ ऑफ फिल। सो यू हैव फॉर द ग्रेट डेप्थ ऑफ फिल यू हैव अ लेंस दैट हैव द 1855, सो अपर्चर आप यूज कर सकते हो टिल f11 और f8, इट डिपेंड अपॉन कितने डिस्टेंस से यूज कर रहे हो, बिकॉज आप बहुत पीछे भी लेके नहीं जा सकते, बिकॉज यू हैव 1855 ओनली, तो आप आगे ही रख सकते हो, विल नॉट यूज द 18। ओके, सो in manual mode, what we can use, you can use the higher aperture, so it will give you the great depth of field. In ISO, you know that कि ISO बहुत ज़्यादा use नहीं कर सकते हैं, ISO will be the 100 or whatever the native ISO, just try to use it. If you जो आप shoot कर रहे हो, that product is not in motion or your camera is not in motion, so you can use 1/100, and because your sorry, your focal length is 1/50, so you can use 1/50 also if you have the less amount of light, because इमेज स्टेबिलिटी का कुछ यहाँ पर नहीं है, बिकॉज योर कैमरा इज ऑन ट्राइपॉड, सो व्हाट यू कैन यूज 1/50, तो आपको लाइट ज्यादा मिल सकती है, बिकॉज यू आर यूजिंग f11 ओवर हियर, सो यू नीड मोर लाइट ओवर हियर। f2.8 और f4 आप यूज नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग f11 और f8, सो यहाँ पर शटर स्पीड बहुत ज्यादा नहीं बनाएंगे, बिकॉज यू हैव टू मैनिपुलेट विद एक्सपोजर, सो यू नीड मोर लाइट ओवर हियर। as I mentioned कि किट लेंस ही कहा है इसने कि किट लेंस आप यूज करोगे, सो वंस यू आर यूजिंग किट लेंस तो ट्राई टू यूज 55, बिकॉज क्या होगा, 18 यूज करोगे, देयर इज ओनली वन बॉटल्स, तो बॉटल के लिए यू विल नॉट चूज द द वेरी लार्जर एरियाज, ओके? कि 18 यूज करोगे, द एंगल ऑफ व्यू विल बी लार्जर, तो एटलीस्ट 55 पे क्या होगा, नॉर्मल एंगल आपको मिल जाएगा, एंड 55 जो आप यूज कर रहे हो, सो डोंट मेंशन वन थिंग, अगर वो डीएसएलआर कैमरा कह रहा है, तो किसी ने मुझे भेजा था, ही मेंशन दैट द व्हिच कैमरा ही आर यूजिंग, सो डोंट ट्राई टू यूज दैट कि आपने क्रॉप सेंसर यूज किया है, यू आर जस्ट सेइंग द जो मैग्निफिकेशन है उसका या क्रॉप फैक्टर है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सो जो 55 कह रहा है, 1855 कह रहा है आपका, सो ट्राई टू यूज कि आपने फुल फ्रेम ही यूज किया है, 55 इज रिमेन 55, डोंट गिव दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कि 55 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1.6 से, दैट काइंड ऑफ इफेक्ट, ये इसकी जरूरत नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू शूट ऑन 55, नॉर्मल व्यू देगा, बिकॉज 18 में देयर विल बी लिटिल बिट डिस्टॉर्शन, मोर एरिया विल बी देयर। अगेन
वाटर लेइंग डाउन है तो क्या होगा कि वर्टिकल पर्सपेक्टिव ज्यादा आएगा कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल, राइट? बिकॉज आपके पास और भी प्रॉपर्टीज नहीं है तो हॉरिजॉन्टल ज्यादा नहीं आएगा. सो ट्राई टू चेंज योर एस्पेक्ट रेशियोज कि किस एस्पेक्ट रेशियो पे सही आ रहा है. इट विल बी द 4:3 बिकॉज 16:9. बॉटल अगर हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशन ज्यादा है, लेइंग डाउन है, तो इस लाइन पे ज्यादा जाएगा. हॉरिजन इसका कम होगा, वर्टिकल इंफॉर्मेशन ज्यादा होगा. सो दैट्स द रीजन विल चूज 4:3 एस्पेक्ट रेशियो. जस्ट फॉर द रेफरेंस इफ यू गाइस हैव. क्वेश्चन यही था ना, बॉटम ऑफ द बॉटल. इसमें बॉटम दिख रहा है, क्लियर है बॉटम. इवन की अभी भी वहां पर देखोगे कि डेप्थ ऑफ फील्ड फिर भी नहीं है. Yes. ओके, वहां भी नहीं है. सो ट्राई टू यूज कि हम F11 पे ये मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको कि डेप्थ ऑफ फील्ड कहां पर आता है. Good. तो मेनली अभी हाईलाइटेड किया हुआ है कि बॉटम ऑफ द बॉटल्स करना है. सो दैट्स द रीजन, इट्स जस्ट फॉर द रेफरेंस. ओके, सी अनदर. हम ये भी एंगल यूज कर सकते हैं, टॉप एंगल भी यूज कर सकते हैं. बट इस एंगल और इस एंगल में क्या डिफरेंस है? सी, इट्स लुक वेरी फ्लैट, राइट? फॉर द टॉप एंगल में एक प्रॉब्लम होती है कि इट्स लुक फ्लैट बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग दैट इल्यूजन दैट देयर इज अ डेप्थ. टॉप जैसे ही वह सरफेस क्लियर हो गया, सो एक क्या होता है, पर्सपेक्टिव का इल्यूजन क्रिएट नहीं होता, इट्स लुक फ्लैट, है ना? तो आई थिंक अगर क्रिएटिव एंगल चूज करना होगा, दैट विल बी द बेस्ट आइडियाज बिकॉज एक पर्सपेक्टिव का फील इसमें आ रहा है. बिकॉज द बॉटम जो है वो ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है. मे बी द ब्रांड लोगोज और समथिंग एल्स, सर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो बॉटम पे हो सकती हैं. क्रिएटिवली अगर देखोगे इन टर्म्स ऑफ दिस वन एंड इन टर्म्स ऑफ दिस वन, आप अच्छे से लाइटिंग इसमें कर पाओगे. इन दिस वन द रीजन इज, वंस योर कैमरा इज इन टॉप एंगल, यहां पर जब लाइटिंग करोगे ना, तो बॉटल का जो बॉटम है वो क्लियर नहीं दिख रहा है. सी द बॉटम इन दिस वन. अगर इसमें बैकलाइट होगी तो ये, और या कोई लिक्विड इस बॉटल के अंदर होगा, तो क्या होगा, लिक्विड का कलर और बाकी चीजें इस बॉटम से क्लियर दिखाई देंगी, राइट? ट्रांसपेरेंट होने के कारण वो जो भी कलर होगा वो सारा कलर यहाँ पर दिखाई देगा. बट इन दिस वन क्या होगा, सिर्फ इसमें क्या होगा, सिर्फ एक लेयर ऊपर ऊपर के कलर्स दिखाई देंगे, पूरा शेप डिफाइन नहीं हो रहा है, राइट? बॉटल का पूरा शेप किसमें डिफाइन हो रहा है? इन दिस वन. सो अगर क्रिएटिव एंगल की बात करेंगे तो विल गो विद दिस वन, है ना? कि बॉटल को ऐसे ले डाउन करेंगे, एंगल ये से होगा. और लिटिल बिट यू नो द 45 डिग्री कहो कि थोड़ा सा कैमरा एबव द, अभी बिल्कुल आई लेवल नहीं है ये. आई लेवल होता तो क्या होता, बैकग्राउंड आता. देयर इज आई लेवल, बैकग्राउंड आता ना अगर आई लेवल पे शूट करते तो. Yes, sir. आई लेवल आता. टॉप, ये पूरा का पूरा टॉप है, ये क्या है, ये हाई लेवल है. इट्स नॉट द टॉप एंगल, इट्स नॉट द बर्ड्स आई व्यू, ये हाई एंगल है. सो अगर हमने ये शूट किया तो फ्रेम देखने से हमें पता चल जाएगा देयर इज नो बैकग्राउंड, यहाँ बैकग्राउंड नहीं है. सो इट्स नॉट द आई लेवल. आई लेवल तब होगा जब बैकग्राउंड पीछे का दिखेगा, यहाँ नहीं दिख रहा. इट मींस कैमरा लिटिल बिट टॉप इज देन द प्रोडक्ट, तुम्हारे प्रोडक्ट से थोड़ा सा ऊपर है. सो क्या हो रहा है, डायमेंशन भी क्लियर है एंड आपको डेप्थ भी दिख रहा है. सो इन दिस वन ये नॉर्मल हो सकता है, ये आप क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं इन दिस वन. जैसे रेडी टून्स. Okay. So see, angle play a important role when you are choosing for the product. Angle is more important because क्या होता है कि end product जो है आपका, it's for the you know the consumer, right?
तो कंज्यूमर को उसका अगर रियल शेप, एक्चुअल टेक्सचर नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, जब एंड कस्टमर तक, कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा तो आपने दिखाया कुछ और था, ये है कुछ और, तो उसकी जो रियलिस्टिक फील है वो खत्म हो जाएगी। ओके, सो दैट्स द रीजन। अगर आप ये और ये दोनों इमेज में देखेंगे तो यहाँ पर आप कितनी भी लाइट कर लोगे ना, बॉटल के अंदर का कलर जो है वो खुल के नहीं आएगा। ओके, जब तक, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ लिक्विड, एज वी आर डिस्कस अर्लियर ना, कि लिक्विड में दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, देयर मस्ट बी बैकलाइट, राइट। जब तक बैकलाइट नहीं होगा, क्लियर उसके टेक्सचर्स नहीं दिखेंगे। सो दैट्स द रीजन, अगर ये पोजीशन है, अगर बॉटल का ये पोजीशन, यू कैन पुट अ बैकलाइट ओवर हियर, राइट। तो बॉटल से क्या होगा, बैकलाइट आने से आपके जो भी लिक्विड है अंदर, जो भी लिक्विड है, लिक्विड का जो भी कलर्स है वो दिखाई देगा। Sorry, just read it once. Okay, one more thing that you can mention in terms of lighting, as I discussed, कि ग्लास पे भी रिफ्लेक्शन वैसे ही आएंगे जैसे मेटल पे आते हैं एज यूजुअल। तो जो भी स्पॉट बनेगा ग्लास पे, देखते हो बहुत जल्दी रिफ्लेक्शंस और स्पॉट बन जाता है, राइट। कि जो भी सोर्स है वो आपका दिखने लगता है ग्लास पे, जहां से भी आप लाइट जिस एंगल से कर रहे हो। सो ट्राई टू अवॉइड द लाइट एक्सिस फ्रॉम द लेंस एक्सिस। लाइट का जो एक्सिस है कभी भी लेंस के एक्सिस से मत करो, वो उसी एंगल पे दिखाई देने लगा। ट्राई टू चेंज द एंगल। एंड वन मोर थिंग, जस्ट मेक योर सोर्स बिगर। कि सोर्स जितना बड़ा बनेगा ना, आपका रिफ्लेक्शन एक एज बनता हुआ जाएगा, राइट। कि आपने बैकलाइट ही किया तो बैकलाइट का सोर्स आप बड़ा बना, ये काइंड ऑफ सॉफ्ट बॉक्स लगाते हैं या कुछ भी ऐसा डिफ्यूजर जो आपके सोर्स को बड़ा बना है। दो चीजें होंगी इससे। द वन थिंग, योर लाइट बिकम सॉफ्टर, तो क्या होगा, इसका शेडोज भी काफी सॉफ्ट बनेगा, राइट। हार्ड लाइट प्लेस करोगे, देयर विल बी द ग्लेयर। ओके, सो यू कैन ऐड ऑन कि ग्लेयर काटने के लिए, अगर आपका मान लो ये मार्क्स, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, राइट। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट, यू कैन यूज पोलराइज फिल्टर टू कट द ग्लेयर। कि ग्लेयर अगर आ रहा है तो तुम उसे भी कट कर सकते हो। तो वन मोर पॉइंट यू कैन ऐड कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर यूजिंग इट टू कट द ग्लेयर फ्रॉम द ग्लास। कि ग्लास से ग्लेयर काटने के लिए वी यूज्ड इट। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, सॉरी मार्क्स ज्यादा क्वेश्चन है, तो यू कैन ऐड ऑन दोस फिल्टर आल्सो, नहीं तो ये 3-4 पॉइंट्स के साथ आप जा सकते हो। Okay, the next question is, what are 4 important points you will take care while shooting theater performance of a play? Right. The first things before shooting, any theater or play, वहां आप क्या देखते हो, इट्स ऑल अबाउट लाइट, राइट। इट्स ऑल अबाउट द कॉन्ट्रास्ट। अगर आपने किसी ने सबने प्ले देखा होगा, इट्स ऑल अबाउट लाइट एंड द कॉन्ट्रास्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज। एवरी टाइम पूरा जो सेट होता है वो लिट अप नहीं होता है, राइट। स्पॉटलाइट इज देयर, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड दोज थिंग्स। अगर आपको पहले से पता नहीं है कि कौन कहाँ कब प्लेसमेंट आएगा, किसके ऊपर कब लाइट आएगी, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब बिकॉज इन थिएटर्स देयर इज अ रूल कि आप बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकते टू फाइंड द राइट पोजीशन। तो आपको अगर पोजीशन पता ही नहीं है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ का एक्चुअल आपका जो पोजीशन है कैमरे का वो होना चाहिए, वेयर यू शुड स्टैंड। बिकॉज विद इन द प्ले यू कैन मूव, नॉइस होगा और लोग डिस्टर्ब होंगे। सो ये नहीं होता थिएटर में, यू जस्ट सिट
take one position, or either you will sit over here, or either you will stand over here. आप ज्यादा movement नहीं ले सकते, you can disturb other person, और play वाले लोग भी disturb होंगे. So the first things is the know the play. Know the play means आपको play के बारे में पता होना चाहिए. So it's not like that कि आपको script पता हो कि क्या है कैसे है. No, it's all about the rehearsal. जब rehearse करते हैं, at that point of time if you will be there, so at least you know where you should stand. ना कि कहाँ पर लाइट आएगी, कहाँ होगा, और किस फ्रेम में क्या चलेगा यहाँ पर. ओके, अदर की कौन सा शॉट कहाँ मैं ले सकता हूँ, कौन सा शॉट में कहाँ कैप्चर कर सकता हूँ, लाइट कहाँ आ रही है, कहाँ डार्क हो रहा है. और अदर इफ देयर इज अ सिंगल कैमरा पर्सन, सपोज तुम अकेले शूट कर रहे हो, तो कई बार क्या होता है, यू नीड अ वाइड शॉट आल्सो, यू नीड टेलीफोटो आल्सो, और बिकम अ वन कैमरा पर्सन यू नीड टू कैमरा. इफ देयर इज नो टू कैमरा पर्सन, तुम ऐड ऑन कर सकते हो कि दोनों अगर तुम शूट करो, यू मस्ट हैव द टू कैमरास, वन कैमरा विद द टेलीफोटो लेंस, अनदर विद द वाइड, बिकॉज बोथ थिंग्स यू हैव टू कैप्चर. कि वहां जो चल रही है चीजें उसे भी करना है, और सम क्लोजअप्स जो कैरेक्टर्स होते हैं उसके भी क्लोजअप्स हमें लेने होते हैं. सो इट्स गुड टू नो योर प्ले. तो क्या करते हैं, पहले जाके रिहर्स, क्योंकि उसी थिएटर में होता है, सो यू नो द स्टेज, यू नो द लाइटिंग्स, यू नो द कैरेक्टर्स कि कहाँ किसकी मूवमेंट है, कहाँ किस पे एम्फेसाइज हो रहा है, कहाँ किस पे स्पॉटलाइट जा रही है. तो 1 घंटे में प्ले में आपको पता होता है कि वेयर यू शुड स्टैंड. तो आपको अपना पोजीशन पता होता है, मुझे यहाँ से अच्छे फ्रेम मिल जाएंगे. बिफोर शूट पहुंच जाओगे और सेम डे में पहुंचोगे, रिहर्स आपने नहीं देखा, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, ऐसा नहीं कर पाओगे, बट इट्स बेस्ट वे टू शूट एनी प्ले कि आप उसके रिहर्स में चले जाओ. ओके, वन मोर थिंग इन अभी, क्योंकि अभी ये चीजें आ गई हैं, सो ट्राई टू यूज, आप एक और पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो, ट्राई टू यूज साइलेंट शटर, बिकॉज ये शटर बहुत ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस करता है, बिकॉज काफी पिन ड्रॉप साइलेंट होता है. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा ये साउंड इट्स वेरी इरिटेटिंग, है ना, कि ये शटर के साउंड बहुत इरिटेटिंग होते हैं. ओके, एंड वन मोर थिंग, यू जस्ट ट्राई टू कैप्चर मेनी इमेजेस, बिकॉज एटलीस्ट आपके लिए क्यों पोज नहीं कर रहा है, सो व्हाट यू कैन डू कि बॉडी का पोस्चर्स, एक्सप्रेशन सब एक साथ कैसे कैप्चर करोगे एंड द राइट वे. सो यू नीड मोर पिक्चर्स. तो आप क्या करते हो, जस्ट रिलीज मोर शटर. आप ज्यादा इमेज क्लिक करते हो, जस्ट ग्रैब मोर इमेजेस, मोर डेटा, सो उतने ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होंगे. सो ट्राई टू यूज, यू कैन इंट्रोड्यूस दोस थिंग्स, और आप वो लिख भी सकते हो कि try to use silent shutter. The many cameras, many mirrorless cameras have those functions. Also try to use mirrorless cameras because weight ज्यादा नहीं होता, so you can handle it properly. Because 1 घंटे तक आपको stand खड़े होके व्यू फाइंडर पे रहना होगा. So try to use mirrorless cameras, or either try to use silent shutter. Which camera have the silent shutter? तो क्या होगा, लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे and you can capture many clicks. Because कई बार देखोगे जहाँ पिन ड्रॉप साइलेंट है, और एज एन कैमरा पर्सन यू जस्ट कीप कैप्चरिंग दोस मोमेंट, आपको खुद इरिटेशन लगने लगेगा कि बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. सो वन मोर थिंग दैट यू कैन ऐड ऑन कि ट्राई टू यूज साइलेंट शटर. ओके, व्हाई आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर कि इमेज क्वालिटी मस्ट बी रॉ, बिकॉज आप ऐसा नहीं कि आप ब्रश मोड पे क्लिक कर रहे हो, बट समटाइम्स आपने वाइड शॉट ले लिया और यू नीड समवन हैव द राइट यू नो द एक्सप्रेशंस. किसी एक पर्सन का, 2 पर्सन का एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, एंड द रेस्ट ऑफ द पर्सन जो वाइड में है, उनके एक्सप्रेशन या बॉडी पोस्चर्स काफी अच्छे नहीं है. तो क्या होगा, अगर आपने जेपैक पे क्लिक किया होगा तो उतना कट करने के बाद उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी. वंस यू कैप्चर्ड ऑन रॉ, you have that much of data, so you can do it in post कि उसको क्रॉप भी करोगे, you have more detail, तो इमेज खराब नहीं होंगे. That's why I mentioned over here, try to use raw. Yeah, one more thing, the raw की प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो जाएगी, बट तुम भी वहां पर ब्रश मोड पे शूट नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट कि तुम 1 सेकंड में 10 या 12 फ्रेम ग्रैब नहीं कर रहे हो. सो इट्स बेस्ट टू यूज raw files, because suppose you don't have the telephoto lenses, मान लो तुम्हारे पास नहीं है, नॉर्मल जूम जो है वो है लाइक 24-105, तो बहुत ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते तुम. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू कैन डू, है ना, यू हैव वन ऑप्शन, जस्ट ट्राई टू शूट ऑन रॉ. सो इन पोस्ट हम उसका क्लोज काट सकते हैं, बट वंस यू शूट ऑन जेपैक, जब उसे क्रॉप करोगे देयर इज अ लेस डिटेल, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहां हो सकता है. सो यू कैन मेंशन दिस थिंग, सो ट्राई टू शूट ऑन रॉ. तुम जेपैक का भी कर सकते हो, बिकॉज प्रोसेसिंग फास्ट होती है, डिडंट नीड टू यू नो द पोस्ट प्रोडक्शन की बहुत ज्यादा मुझे एडिट नहीं करना होता, बिकॉज देयर इज अ कलर.
Okay, there is a many functions in autofocus mode. Now many cameras have many functions, you know, कि तुम continuous click करना चाहते हो, you know, every time you don't need to hunt for the focus, right? कि continuous AF mode या back focus button mode जो है, you didn't need to hunt for the focus. एक बार आपने रिलीज किया, अब वही रहेगा, हमेशा वो हंटिंग का प्रोसेस नहीं चलेगा. सो द बैक फोकस बटन या ये कंटिन्यूअस एफ या फिर ट्रैकिंग, जो भी जितने भी ऑप्शंस हैं आपको ऑटो फोकस के, अकॉर्डिंग टू योर प्ले यू जस्ट सेट इट, कि आप उसे सेट कर सकते हो और यूज कर सकते हो कि अगर कोई एक ही कैरेक्टर को आपने पकड़ के चला है तो देयर मस्ट बी द कंटिन्यूअस एफ. तो क्या होगा, वो कैरेक्टर जहां भी मूव करेगा फोकस विल मूव विद दोस कैरेक्टर्स. तो हमेशा क्या होगा, टाइम नहीं लेगा फोकस को हंट करने का, बिकॉज यू नो तुम्हारे कैमरे में कॉन्ट्रास्ट रिस्ट्रिक्शन वाले फोकस होंगे, तो इट टेक्स टाइम. तो ऑलरेडी आपने अगर ये मेथड यूज किया हुआ कंटिन्यूअस ऑटो फोकस का, तो उसी कैरेक्टर को वो ट्रैक कर लेगा. देन द कंटिन्यूअस शूटिंग, कंटिन्यूअस मींस अगर मूवमेंट कुछ ऐसा है ना, कि जहाँ की एक्सप्रेशन बॉडी के पोस्चर्स कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी एक सर्टेन पॉइंट पे बहुत अच्छा लग सकता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन, यू नो, द फायर, यू कैन यूज अ ब्रश मोड और यू कैन यूज द कंटिन्यूअस शूटिंग, कि कहीं ना कहीं बॉडी का पोस्चर्स, आई लाइंस और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो क्लियर और सही हो सकता है, बिकॉज मेनी टाइम योर हैंड विल ओवरलैप और समथिंग एल्स. तो पोस्चर्स अच्छे आ गए और हैंड जो है आईज के आगे आ गया या यहाँ आ गया, कहीं भी फेस के आगे आ गया, तो वो इमेज सही नहीं होगा. सो जस्ट कीप इट ऑन व्यू फाइंडर and try to use more images, try to capture more images. Okay, metering mode. If you are using telephoto, then you can use the spot metering, because क्या होगा, you only need the characters. अगर तुम telephoto use कर रहे हो, तुम एक एक character के लिए image click कर रहे हो, right? Then why you need for the background? If you guys use a metering mode, अगर तुम उसमें center weighted use करोगे, then telephoto there's a many things in background. ज़्यादा light हो रही है, properties पे light है, many kind of light. The backlight is falling at that point of time. Maybe your character will be अंडर एक्सपोज, बट तुम्हारा मीटरिंग मोड क्या दिखाएगा, यू आर ओवर एक्सपोज, बिकॉज यू आर यूजिंग व्यू फाइंडर. सो व्यू फाइंडर के थ्रू क्या करोगे, यू आर जस्ट जजिंग इट थ्रू द मीटरिंग मोड. मीटरिंग आपको क्या बता रहा है, यू आर ओवर एक्सपोज बिकॉज इट्स ग्रैबिंग द डिटेल ऑफ बैकग्राउंड आल्सो वंस यू आर यूजिंग सॉरी इवोल्यूटिव और मैट्रिक्स, जो भी है, दिस डिपेंड अपॉन द ब्रांड. मैट्रिक्स फॉर द निकॉन एंड द इवोल्यूटिव फॉर द कैनन. तो वो मीटरिंग मोड क्या होता है, इट विल गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ 95% ऑफ योर व्यू फाइंडर. तुम्हारे व्यू फाइंडर के थ्रू जो भी एरिया है 95% एरिया का एक्सपोजर बताता है. इट मींस उसमें जो बैकग्राउंड में लाइट है उसका भी इंफॉर्मेशन बता रहा है, उसकी भी इंटेंसिटी बता रहा है, जो फोरग्राउंड में है उसकी भी इंटेंसिटी बता रहा है. तो होगा क्या, दोनों को मर्ज करके वो बताएगा सेंटर वेटेड में कि तुम ठीक हो, है ना, या तुम ज्यादा, बिकॉज पीछे की भी लाइट वो कैप्चर कर रहा है और सामने की भी कर रहा है. तो दोनों को मिक्सअप करके वो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, यू आर इन center or maybe you are dark or you are overexposed. So आप क्या करोगे, according to backlight you are just setting your exposure, right? So there's a different kind of metering mode, is spot metering. Spot क्या होता है, particular spot का information आपको बताएगा, और either you can use a center weighted, जो a kind of 16% आपकी व्यू फाइंडर का और centered का सिर्फ exposure बताता है. It will not take a information from the backlight और जो साइड की लाइट है या जो भी लाइट्स है उसका, सिर्फ आपके समझ लो डिस्प्ले के सेंटर का बताता है. और स्पॉट मीटरिंग सिर्फ स्पॉट का एक्सपोजर बताता है. इफ यू गाइस हैव एवर यूज्ड इट, अगर नहीं यूज किया, इफ यू गाइस हैव द कैमरास, ट्राई टू फिक्स योर कैमरास ऑन ट्राइपॉड और समथिंग एल्स, और फ्रेम में हर तरह के ब्राइटनेस वाली चीजें रख दो, कोई एक लाइट या दो लाइट करके चेक कर लीजिए, या डे लाइट में बाहर चले जाइए और सी द डिफरेंस इन मीटरिंग मोड. एवरी जितने भी मीटरिंग मोड है ना, इवोल्यूटिव, सेंटर वेटेड, स्पॉट मीटरिंग, सब में देखोगे फ्रेम वही है, लाइट वही है, एक्सपोजर वही है, बट द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड. ये किसी ने चेक किया है अपने कैमरे में आप में से? Yes, sir. Yes. यस सर. तो आई थिंक एवरीवन इज फैमिलियर विद दिस दोस मीटरिंग मोड. तो सो जब हम टेलीफोटो यूज करें, इट मींस आपके लिए सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कोई एक पर्सन है, राइट? तो सिर्फ उस पर्सन का एक्सपोजर मुझे चाहिए ना. आई विल ओनली चूज when I will choose the telephoto lenses, I will go with the spot metering or center weighted. बट अगर मैं वाइड एंगल यूज कर रहा हूँ तो आई विल गो विद द इवोल्यूटिव, बिकॉज मुझे सारा चाहिए उसमें, जो इस साइड कैरेक्टर्स, जो वहाँ कैरेक्टर हैं, जो बैकग्राउंड में कैरेक्टर्स है, सबका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. सो इट्स डिपेंड अपॉन द लेंस, विच लेंस यू आर गोना चूज. अकॉर्डिंग टू लेंस यू हैव टू चेंज योर मीटरिंग मोड. आपको लेंस के अकॉर्डिंग मीटरिंग मोड चेंज करना पड़ेगा.
Okay, now you can say the shutter speed, not the 1/100 or more than 1/100, right? Okay, because there's a moment. So to capture those moments, to freeze those moments, you have to use higher shutter speed. Also, you are using the handheld. Okay, so or either if you are using the telephoto lenses और भी ज्यादा करना पड़ेगा. So it's depend कि movement बहुत ज्यादा हो रहा है, at that point of time आप shutter speed बढ़ा सकते हैं, and you have to compensate with your ISO or your aperture. Okay, the one thing that is more important is your white balance. आप थिएटर का देखते हो, अपना एक टोन होता है, हर एक प्ले का अपना एक टोन होगा, राइट? किसी का ब्लू टोन होगा, किसी का वार्म होगा, राइट? अगर आपने प्ले देखे होंगे तो डिफरेंट प्ले हैव द डिफरेंट टोन, सर्टेन कलर्स और लाइट्स, दे आर प्लेइंग विद दोस जेल्स एंड दोस लाइट्स. उसको एज इट इज जैसा है वो रियल कलर ही रहने दो, उसे डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट, राइट? सो यू कैन यूज द कस्टम वाइट बैलेंस, जिसमें क्या होगा उस पोजीशन में जो लाइट आ रही है, जैसी लाइट आ रही है, इफ यू गाइस हैव एवर यूज्ड द कस्टम वाइट बैलेंस, नहीं है तो अपने कैमरे में चेक करके देखो कि बाय रेफरेंसिंग एन इमेज, इट मींस आप जहां शूट कर रहे हो ना उस रेफरेंस में कोई व्हाइट बोर्ड लेके एक इमेज शूट करो, दैट्स कॉल्ड द कस्टम वाइट बैलेंस. और वहां से उस इमेज को लेने पे क्या होता है कि उसी का व्हाइट बैलेंस एक्टिवेट हो जाता है, उस एनवायरनमेंट में जो लाइटिंग आ रही है उसके अकॉर्डिंग आपका व्हाइट बैलेंस होगा. सो अगर आप मान लो ब्लू लाइट आ रही है, आपने बढ़ा दिया तो थोड़ा सा वार्म हो जाएगा या बहुत ज्यादा ब्लू हो जाएगा, या आपने टंगस्टन पे रख दिया तो हो सकता है थोड़ा और वार्म हो जाए. सो इट्स डिपेंड. तो वो नहीं करना, ट्राई टू यूज कस्टम व्हाइट बैलेंस. तो क्या होगा, जो नेचुरल टोन है उसका, उस प्ले का जो नेचुरल टोन है, दैट विल बी रिमेन सेम. वो टोन चेंज नहीं होगा, जो उसका एस्थेटिक्स है उस प्ले का वो बचा हुआ रहेगा इन टर्म्स ऑफ कलर्स. बिकॉज हर एक कलर्स में देखोगे ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लू टोन ही आती है, there's a different kind of lighting that they are using. सो प्ले का एस्थेटिक बचा हुआ रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कलर. तो व्हाइट बैलेंस आप कस्टम यूज कर ले तो वहां पर यूज जाएगा. देन I've already discussed this one, the respect other, कि आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते पर्सन को आप, बिकॉज आप इधर उधर जाके ज्यादा मूवमेंट नहीं ले सकते. तो जो लोग देख रहे हैं काफी कंसंट्रेशन के साथ देखते हैं, दे गॉट डिस्टर्ब. सो आपके मूवमेंट थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, नॉट टू मच कि बीच से निकल के जा रहे हैं, आगे से निकल के जा रहे हैं. तो थिंग्स. Okay. The third question is, what are 4 important things you will take care while shooting high speed shot of, say, milk pouring in a pack shot of milk powder advertisement? Okay. So in the pack shot, it's called the product photography. It's not talking about the moment in videos. Videos, there will be different approach. In terms of photos, there will be different approach. दोनों के pouring में approach दूसरा होगा दोनों का. So the first things that you have to shoot on, इट मीन्स आप जब फ्रीज करना चाहोगे मोशन को तो क्या करना पड़ेगा, है ना? यू नीड हायर शटर स्पीड, राइट? द फर्स्ट थिंग्स टू फ्रीज दोज मोशंस. तो फर्स्ट थिंग्स जब आप प्रोडक्ट शूट करते हो ना, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज प्रोडक्ट हम क्यों शूट करते हैं, टू टेक अ प्रिंट ऑफ इट, राइट? तो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करते हैं या मैगजीन के लिए यूज करते हैं कहीं भी. सो ये प्रिंट में जाएगा बेसिकली, उसके लिए यूज करते हैं. सो दैट्स द रीजन यू नीड अ हाई एंड कैमरास, है ना? कि वो आपको, अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो दैट्स अनदर थिंग्स कि उसमें कितने फ्रेम रेट पे आप शूट कर रहे हो. अगर आप स्टिल्स के बारे में पहले ये क्लियर कर लो, यू विल राइट इट अबाउट द स्टिल और आइदर फॉर द वीडियोस. ये क्लियर कर लेना यहाँ पर लिखने से पहले. अगर ऐसे कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, सो आप कैसे शूट करोगे आप पहले डिसाइड कर लो. आइदर यू आर शूटिंग फॉर द प्रोडक्ट, दोनों हो सकते हैं, शुड बी इन मोशन, और ये स्टिल भी हो सकता है. तो दोनों कमर्शियल है, दोनों हो सकते हैं. तो आप किस पे शूट करना चाह रहे हो? इफ यू आर यूजिंग द हायर फ्रेम रेट,
there will be the different cameras or there will be different approach. आप still के लिए कर रहे हो, there will be different approach, है ना, दोनों में different होगा. तो you just first decide कि आप किस पे shoot करना चाह रहे हो और क्या करना चाह रहे हो. Is it still or is it videos? सर क्या हेलो ये हाँ बताइए. वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, बताइए. सर यहाँ पर लिखा है ना while shooting high speed shot Yeah. से मेल कटिंग, तो शॉट्स का है तो फोटो की ही बात कर रहा है. ओके ओके. अब वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हैं आप? हेलो सर, कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, I'm here. सर हियर इट इज रिटन while shooting high speed shots, तो ये Yeah. शॉट्स वीडियो भी हो सकता है या फिर फोटो भी क्या? नहीं, अभी जो मैंने यहाँ इसलिए मैंने क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ मैंने वीडियो के लिए लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप जब खुद का लिखे तो पहले आप क्लियर हो जाए. यू आर रेटिंग राइटिंग अबाउट द स्टिल्स और वीडियोस. सर यहाँ पे तो ये हाई स्पीड शॉट्स इसका मतलब है स्टिल है ना? या बट हाई Okay, स्पीड thank you. शॉट में आप मेंशन कर सकते हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं अबाउट द वीडियोस हाँ आल्सो. हाँ तो जब आप वो समझ क्लियर हो गया. जाएंगे कि देन वी आर प्लेइंग विद द शटर एंगल, उसमें यस थोड़ा सर. सा डिफरेंस कर लेंगे. जब हम वीडियो कहेंगे ना, देन वी गोना प्ले विद द शटर एंगल. ओके, रिस्पेक्ट ऑल. इफ बिकॉज़ यहाँ क्या होगा, शटर जैसे ही आप शटर स्पीड के साथ मैनिपुलेट करते हैं, क्या शूटिंग ऑन हायर शटर स्पीड, राइट, तो क्या होगा, देयर विल बी द लेस अमाउंट ऑफ लाइट विल कम, राइट. सपोज यू आर शूटिंग ऑन f300 और f400, बिकॉज़ आपको फ्रीज करना है मोशन को, राइट, एंड यू आर शूटिंग इन अवेलेबल लाइट, ये तो पॉसिबल नहीं है. On 400 you need a light, right, the external light you need. So if you are using a 400, जो आप ये कह रहे हो, जो भी lights हम normal use करते हैं, like Godox की या Multi और Baby, whatever you are using, जो भी आप product studio में देखते हो ना, normal जो lights लगी होती है, right, वो 400 ISO पे, because you also need a depth of field, right, 400 shutter speed पे use करोगे, every single light जो आपके studio में है ना, if you are using a 400 shutter speed, it will give you the flicker. जो नॉर्मल गोडॉक्स वाली है और ऐसी लाइट्स है ना, you guys ever use it in a studio, try to use a shutter speed of 400, it will give you a flicker. वो फ्लिकर दिखाई देगा अगर वीडियो में शूट कर रहे हो तो, है ना, अगर वीडियो में शूट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई मेंशन ओवर हियर कि अगर पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, देन यू हैव टू चेंज द लाइट. इफ यू आर शूटिंग अ वीडियोस, at that point of time you can play with the shutter angle. The shutter angle is different topics, अगर आप में से जिसको पता होगा, you can change the angle. So basically क्या होता है कि there's a 360 degree angles. Most of the time we are using 180. So that's one reason we are talking about, once you have using whatever your frame rate, your shutter speed must be double, right? कि आप अगर 25 frame पे shoot कर रहे हो, shutter speed must be 150. The reason is कि हमारा shutter angle 180 होता था, right? कि 180 पे यूज करते थे. आपने 90 कर लिया तो 4 टाइम फास्टर होना पड़ेगा. इट मींस यू आर डूइंग 25, इट विल बी 1/100. सो यू कैन मैनिपुलेट इट कि 180 डिग्री को 270 कर देंगे तो शटर स्पीड और थोड़ा सा कम हो जाएगा. देयर विल बी मोर अमाउंट ऑफ लाइट विल कम. सो इफ यू आर शूटिंग वीडियोस, ट्राई टू यू नो द राइट अबाउट द फ्लिकर, बिकॉज ज्यादा फ्रेम रेट पे जैसे ही शूट करोगे, जो हमारी नॉर्मल लाइट है, जो तुम्हारी स्टूडियो की लाइट्स हैं, वो फ्लिकर देगी ही देगी. 100 से जैसे ही ऊपर जाओगे, दस योर शटर स्पीड विल बी 200. 150 पे शूट करो, शटर विल बी 300. 280 और 300 के बाद कोई भी ऐसी लाइट जो नॉर्मल लाइट्स हैं, जो स्टूडियो में यूज होती हैं, स्ट्रॉब और इस टाइप की जो भी वो लाइट्स हैं, वो फ्लिकर आपको देंगी. ओके, यू नो दैट कि कौन सा प्रोडक्ट है, मिल्क और ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं, यू वांट टू शूट द टेक्सचर ऑफ इट, राइट. ये बहुत वाइड शूट नहीं करेंगे ना. अगर मुझे कुछ दिखाना होगा, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, आई विल शो यू. ऐसे शॉट्स नॉर्मल लेंस पे तो नहीं आएंगे. That you need a macro lens. I'll just come to that. And which macro? Yeah, here. Macro lens से क्या हो, you are able to get closer to the product. तो क्या होगा, उसके डिटेलिंग भी और होगी और जो टेक्सचर्ड हैं वो क्लियर दिखाई देंगे. बिकॉज आप जब वाइड में शूट करोगे इतना फील नहीं आएगा.
but which macro lens? It must be the true macro lens. अब वो नहीं मार्केट से रिवर्सिबल रिंग उठा के ले आया और लगा दिया है. So true macro lens is, yeah, whatever the true macro lens ये होता है is a magnification. कि whatever the size of your product, जो भी चीजें आपकी हैं जो सेंसर पे आ रही हैं, the same size तुम्हारे सेंसर पे प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, that's the magnification ratio. Okay. So the जो true इसको कहते हैं true macro lens. True macro lens have the magnification ratio is 1:1. When you purchase the lens, उस पे लिखा हुआ रहता है ratio 1:1, 1:2. So 1:1 means कि suppose for the example तुम्हारा जो product है, जो भी चीजें आप shoot कर रहे हो, the macro size of is 10 mm, तो 10 mm ही produce होगा तुम्हारे सेंसर पे. So that's the true macro. If it's the 1:2, it means 10 mm का जो साइज है वो तुम्हारे सेंसर पे 5 mm होगा. So you can mention over here कि just use the true macro lenses, है ना, to show the texture of it, और जो उसका magnification है वो आपको दिखाई दे. Okay. Then your camera setting, obviously you will shoot on manual mode, right? Because manual mode में shoot नहीं करोगे तो कोई एक priority mode choose करोगे तो दूसरा effect होगा. So you need full control on your exposure. So the first things, जो पहला चीज है क्वेश्चन में ही आपका है कि you have to freeze those movement, तो you have to use higher shutter speed. So you have to hit and trial movement चलेगा आपका कि कितने shutter speed पे आप इसे fix कर पाते हो और वो मोशन आपका कैप्चर हो पाता है. You are able to freeze those motions. So ये at once पता नहीं चलने वाला है, right? So you have to pour it 1 or 2 times or 3 times. You have to increase the shutter speed, decrease the shutter speed. So ये hit and trial में आपको पता चल जाएगा what should be the exact shutter speed is, कि shutter speed कितना होना चाहिए. तो most of the time अगर ऐसा कोई भी moment होता है, अगर आपने ट्राई किया होगा, I'll get it on 800 or 600, right? 600 पे भी आ जाता है, 800 पे भी आ जाता है, but not less than 600. उस पे उतना फाइन डिटेल नहीं आ पाएगा आपका. जो आप एक एक ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई दे, वो कहीं ना कहीं वो ड्रॉपलेट्स क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा. इफ लिटिल बिट यू नो द शेकी. So to freeze those movement, आप क्या कर सकते हो, just try to be safe. It's in the 800, 1/800. And if you are doing in the natural light, so you need bigger bounce board जिससे कि fill भी उतना मिले, because you are using a 1/800 और aperture भी use करोगे 5.6 or 4, because you need little bit depth of fill, and you can't manipulate in ISO. कि ISO बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो फाइन डिटेल में ग्रेन्स आ जाएंगे. ऑलरेडी यू आर शूटिंग इट मैक्रो, तो ग्रेन्स और विजिबल होंगे बिकॉज योर एंगल ऑफ व्यू और तुम्हारा काफी कंप्रेस्ड है. सो दैट्स द रीजन वो ग्रेन्स भी आपको क्लियर दिखाई देंगे. सो यू विल नॉट एबल टू यूज हायर ISO. So you need a bigger bounce board or two bigger bounce board if you are using in natural light. If you are using the studio light, it's totally depend upon you how you want to describe it. अगर studio light use करोगे, you are using a 1/800 shutter speed, aperture 4.5, you know how much light you needed. Okay, तो 1 kilowatt के बदला you can say that the 2 kb लगा देंगे या 4 kb लगा देंगे, and try to diffuse it. Your source will be bigger. So soft light, you need a soft light. So अगर studio setup की बात होगी, you need a 3 light for the key fill, and one more must be the backlit, because तो जब भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जिसे आप शूट कर रहे हो, लाइक मिल्क और वाटर जैसे कुछ भी है, टू गेट द टेक्सचर ऑफ इट क्या करना होता है, हमें बैकलाइट करना पड़ता है ताकि उसके टेक्सचर और क्लियर हमें दिखाई दे. सो यू नीड अ 3 लाइटिंग सेटअप. की भी होगा, फिल भी होगा. फिल आप बाउंस से नहीं कर सकते बिकॉज वो लाइट इतनी हार्ड नहीं होगी. विल मेक दोज लाइट सॉफ्टर. लाइट जैसे ही सॉफ्ट करोगे तो बाउंस बैक भी नहीं होगा बिकॉज यू आर यूजिंग शटर स्पीड है 1/800. तो लाइट का फिल भी नहीं पहुंचेगा. सो यू नीड अ फिल लाइट अगेन. दूसरी लाइट भी लगेगी, 2 लाइट के सेटअप में नहीं होगा. सो यू नीड 3 लाइट, की लाइट, फिल लाइट एंड द बैकलाइट फॉर द मिल्क को और एक्सपोज करने के लिए और टेक्सचर दिखाने के लिए.
ओके एक चीज और होता है, वंस यू आर कोई भी फास्ट मूविंग सब्जेक्ट में तुम क्लिक कर रहे हो, अगर थोड़ा भी मूवमेंट हुआ इट में भी इमेज विल बी शेकी, बिकॉज एग्जैक्टली जो उसकी स्पीड है उसी स्पीड का तुम्हारा शटर स्पीड तुमने फिक्स कर लिया है। इफ देयर इज अ लिटिल बिट मूवमेंट, वो हो सकता है तुम्हारा इमेज शेकी हो जाए। सो दैट्स द रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी आर यूजिंग अ रिमोट, राइट, कि हम रिमोट यूज करते हैं, बिकॉज वंस यू ट्राई टू रिलीज योर शटर, शटर जब प्रेस करोगे तो इंटरनल वाइब्रेशन होगा, राइट। तो तुम्हारा शटर स्पीड इतना फास्ट नहीं है, बिकॉज जो भी तुम्हारे प्रोडक्ट की स्पीड है उसी से मैच करता हुआ स्पीड आपने फिक्स रखा है। सो इफ देयर इज इंटरनल वाइब्रेशन, बिकॉज जब तुम रिलीज करोगे तब होगा, at that point of time maybe the little bit shaky image will be there. So try to use remote, और एक और क्या होता है, सेल्फ टाइमर मोड होता है कि अपने आप वो टाइमर लगा दो, उतने सेकंड पे वो रिलीज हो जाएगा, बिकॉज आप जब हैंड से करोगे तो मे बी देयर विल बी द वाइब्रेशन। ओके द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि once we are shooting milk or that kind of product, it's not milk, वो मिल्क होता ही नहीं है। सो अभी तक जो था वो यही था, मिल्क शूट नहीं करते हैं हम, इट्स एल्मस ग्लू, ये व्हाइट ग्लू होता है, ये मिल्क नहीं होता। जितने भी आपने ऐड देखा, व्हाट एवर ऐड यू आर सीइंग फॉर द मिल्क, द स्प्लैश ऑफ मिल्क या कुछ ऐसे जो भी ऐड देखते हो, अमूल ताजा और ये, कोई भी मिल्क नहीं होता है, इट्स नॉट मिल्क। हैव यू एवर फील योर मिल्क हैव एज मच एज थिक? इतना थिक मिल्क आज तक दिखा है आपको? अभी बहुत सारे ऐड देखा होगा आपने, कंट्री डिलाइट, कंट्री डिलाइट के ऐड अभी सबसे ज्यादा चलते हैं बाकी किसी भी मिल्क वाले प्रोडक्ट से ना। हैव यू सीन दैट काइंड ऑफ थिकनेस इन मिल्क? कभी इतना थिक दिखा है? हैव यू सीन द ऐड ऑफ ओरियो जो मिल्क में डिप करता है? हैव यू एवर फील दैट काइंड ऑफ थिकनेस इन मिल्क? चाहे कितना भी जला लो, हमें तो नहीं मिला ऐसी थिकनेस। No, sir. ऐसे ऐसे थिकनेस तो नहीं होती है, जस्ट द इल्यूजन। ये कहीं से मिल्क नहीं होता, मिल्क हम शूट नहीं करते। ये क्या होता है? ये होता है, ये दिखाता हूँ, एलिमेंट ग्लू आता है और कुछ क्या कहते हो, केमिकल्स आते हैं जिसके साथ हम इसे मिलाते हैं। एलिमेंट ग्लू, व्हाइट ग्लू आता है ये, इसको और केमिकल आते हैं जिसके साथ हम मिक्सअप करते हैं, है ना। सो जो टेक्सचर है उसका मिल्क जैसा आता है, बट इज द थिक। सो जब आप उसे स्प्लैश करोगे तो जो थिकनेस है, दूध जब स्प्लैश करेगा तो दिखेगा ही नहीं, है ना। जब नॉर्मल दूध आप स्प्लैश कुछ भी करोगे उतनी डेंसिटी नहीं होती कि आपको दिखेगी। सो देयर मस्ट बी द थिकनेस जो होल्ड करे, जो बैकलाइट है तो उसका टेक्सचर दिखे। सो दैट्स द रीजन देयर इज अ ग्लू, विल यूज द ग्लू, एंड ग्लू के साथ कुछ केमिकल मिक्सअप करते हैं, देन विल यूज दिस वन। सो कुछ आपको दिखाई देता है, ये इतना थिक मिल्क हो सकता है क्या? नहीं नहीं, इतना हमने तो स्प्लैश करके भी देख लो तो ऐसा थिकनेस तो नहीं दिखेगा, ऐसा टेक्सचर नहीं दिखेगा मिल्क का, काफी पतला होता है ना। सो दिस इज द एलिमर ग्लू, ये आराम से अमेज़न पे मिल जाते हैं। इफ यू वांट टू ट्राई इट यू कैन ट्राई इट, है ना। सो मिल्क और ऐसे कोई भी चीजें शूट करने के लिए वी आर यूजिंग द व्हाइट ग्लू इज द ब्रांड, और भी कंपनियां आती हैं जो इससे बनाती हैं। सो कितने पॉइंट्स हो गए इसके? ट्राई टू फ्रीज द मोशन बेसिकली ना, कि इससे रिलेटेड ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, राइट। कि जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन ये हो कि मिल्क ही हो, एनीथिंग कुड बी, कि आप स्प्लैश ऑफ वाटर के बारे में पूछ सकता है, राइट। कोई भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में पूछ सकता है, वाटर स्प्लैश का क्वेश्चन हो या ऐसा कुछ भी, अगर मिल्क हो सकता है तो ऐसे कुछ भी हो, बट द थिंग्स रिमेन सेम। ओके वन थिंग दैट ना, ओके जब भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हम शूट करते हैं ना, राइट, वी नीड अ पेपर टॉवेल, बिकॉज एवरी टाइम हमेशा एक बार में आपको परफेक्ट शॉट नहीं आ जाएगा, इट्स काइंड ऑफ हिट एंड ट्रायल। तो जैसे ही आप पोर करते हो तो मेनी थिंग्स आपके बैकड्रॉप पे नीचे वो चीजें गिर सकती हैं, तो यू हैव टू क्लीन अ सरफेस अगेन एंड अगेन, है ना। कि एट वंस आपको एग्जैक्टली शॉट नहीं मिलता, तो वी नीड अ पेपर टॉवेल। या नहीं है तो गरी में यूज द न्यूज़पेपर, और उसी से कम सोक करो, डोंट यूज अ क्लॉथ, इट मे बी देयर विल बी द डस्ट स्क्रैच देगा। सो many times you have to wipe it properly,
क्योंकि एक बार में शॉट नहीं आएगा, तो देयर मस्ट बी द पेपर टॉवल. दिस इज द प्रिकॉशंस. ऑल्सो द बिकॉज वो पोर होके नीचे गिर सकता है, तो काइंड ऑफ अगर ऐसे शॉट्स होते हैं, इफ यू हैव द प्रोडक्शन बजट, मैं प्रोफेशनली बता रहा हूँ, यूज द एक्वेरियम काइंड ऑफ थिंग्स, कि ताकि स्प्लैश होके मिल के ऐसा कुछ भी हो बाहर ना जाए, बिकॉज इट्स अ लिक्विड और इलेक्ट्रिक से इसका कनेक्शन जल्दी हो सकता है, और अगर वो स्प्लैश होके नीचे गिरा, देयर विल द लाइट, देयर विल बी एक्सटेंशन बोर्ड, उसमें जा सकता है और बाकी जगहों पे जा सकता है. सो यूज अ एक्वेरियम काइंड ऑफ थिंग्स, जिसके अंदर ये सारी चीजें हम करते हैं, ताकि वो उतने एरिया में ही रहे और वहीं हम वाइप करके फिर से काम चला लें. सो देयर मस्ट बी द पेपर टॉवेल, न्यूज़पेपर, एनी काइंड ऑफ थिंग्स जो कि सरफेस आपका क्लीन कर दे. देयर विल बी द नो डस्ट. One second. Last I have asked this question. ये मैंने पूछा था ना, Yes, sir. Yes. मेटल प्रोडक्ट कैसे शूट करेंगे, राइट? सो इसमें कौन सा इमेज आपको सही लग रहा है? Which images look good? There's a 3 image, right? 1, 2, 3. Third one. Third ones. Third one, why? The reason is Sir, because it like gives a sort of shiny feel also. In first one there's no shiny feel. Second one is completely lit up. Third one seems like it gives a shiny feel to it. but have you Yes, sir. seen that कि जो third one में है उस पे एक तरह का पैच लग रहा है? Is it patchy? Yes, sir. Yes, it looks a bit. Is it patchy? But sir, it is the property of that metal. Yeah. Yes, sir. So but in terms of lighting, once you're doing it, right? जब हम लाइट उस पे कर रहे हैं, see that there's a patchy kind of things. As in customer, अगर मुझे ऐसा कुछ दिखाई देगा तो मैं किसके साथ जाऊंगा? अगर मेरा ग्रेडिएशन होगा मेटल पे, राइट, अगर ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है सेकंड वाले पे, बीच वाले पे, इफ देयर इज अ ग्रेडिएशन, तो क्या वो अच्छा लगता? Yes, sir. इफ देयर विल बी ग्रेडिएशन, वो इसलिए आपको लग रहा है बिकॉज़ इट लुक फ्लैट, राइट? थर्ड वाला इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, देयर इज अ ग्रेडिएशन, कि हार्ड से सॉफ्ट हुआ है, बट वो रिफ्लेक्शन काफी अजीब सा लग रहा है. सो फर्स्ट वाला इज प्योरली डार्क, उसमें टेक्सचर निकल के नहीं आ रहा है. सेकंड वाले में क्या हो रहा है? ओवर लग रहा है. थर्ड वाला लग रहा है बट एक ग्रेडिएशन नहीं है, सीधा क्या हो रहा है? व्हाइट टू जो सरफेस का कलर है उसका वो जा रहा है, ग्रेडिएशन नहीं है. प्रोडक्ट जब भी शूट करते हैं, इट्स नॉट द फ्लैट, बिकॉज यू आर नॉट शूटिंग फॉर द अमेजन और समथिंग, उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं. सो इफ यू आर शूटिंग एनी प्रोडक्ट दैट इज अ मेटल, इट्स अ मस्ट, द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोटिस, यू हैव टू फाइंड द टेक्सचर ऑफ इट. उसका टेक्सचर कैसा है आपको ये निकालना पड़ेगा. अगर सामने वाले को टेक्सचर उसका पता नहीं चल रहा, इट्स वेरी डिफिकल्ट. अब कार के ऐड देखते हो ना, you guys have seen the ad of car ना, देखते हैं मेटल वाले होते हैं, राइट? Okay, many times you see the sign or the line of something on the car is, देखते हो ना आप, but in real world जब आप खरीदते हो, have you ever seen that kind of reflections or something जो ad में दिखाते हैं? lines नहीं दिखता ना, वो जो lines दिखाते हैं, जो reflections दिखाते हैं, edges दिखाते हैं, that is not inside. वो आपके प्रोडक्ट में होता नहीं है. They just create it कि वो एक इंटरेस्टिंग लुक दे उसको, वो क्रिएट करते हैं. दैट इज नॉट लाइट, दैट इज अ रिफ्लेक्शन, है ना? थ्रू अ सर्टेन एंगल दे आर यूजिंग इट. फिल्टर कर सर एनहांसिंग फिल्टर करके कुछ यूज होता है. इनहांसिंग? एनहांसिंग फिल्टर करके कुछ यूज होता है टू इंक्रीज द कलर. No, that's another things. But in terms of lighting, what we'll use, they use the bigger diffuser, right? जो कार से 4 गुना 5 गुना बड़ा होगा डिफ्यूजर, दे आर यूजिंग दोज थिंग्स. इसलिए आपको कहीं एक जगह से लाइट होगा, दैट सोर्स इज स्मॉलर, वो पैच दिखेगा. थर्ड वाले में क्या हो रहा है? सोर्स दिख रहा है ना. ऐसा रिफ्लेक्शन कब आएगा? जब सोर्स दिखेगा. सेकंड वाले में क्या हो रहा है? सोर्स दिख रहा है, राइट? मेटल पे रिफ्लेक्शन ही तो बन रहा है ना, व्हाइट क्यों दिख रहा है ऐसा? वो बिकॉज वट एवर द टेक्सचर्ड जो भी आपने लाइट यूज किया है, उस लाइट का रिफ्लेक्शन इस पे बन रहा है, वही बन रहा है ना. नाउ द योर सोर्स इज बिगर, सो दैट्स द रीजन पूरे के पूरे जो आपके वो टेक्सचर्ड हैं वो पूरे पे बन रहा है. इसमें क्या हो रहा है? लाइट एक सर्टेन एंगल से आ रहा है,
So at one angle, a certain angle, that reflection is there. कि एक certain angle पे वो reflection आपको दिख रहा है. So basically यहाँ पर हम gradation ला सकते हैं कि gradation कैसे आ सकता है. It's more important. कि flat फिर भी नहीं लगा, metal है but फिर भी flat नहीं लगेगा. So as earlier I mentioned है कि आपका जो angle है ना, अगर वो कैमरे के एंगल से ही जाएगा तो क्या होगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंट लाइट का जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो जाएगा, राइट? कि कैमरे के एंगल से ही आपने लाइट दी है. कभी देखा फ्लैश लाइट कभी किया है मेटल पे यूज? कभी अगर फ्लैश लाइट फायर किया होगा मेटल या ग्लास पे, हैव यू फील, अगर ग्लास पे भी यूज किया होगा, यू फील मोर ग्लेयर ओवर देयर. दिखता है बहुत ज्यादा ग्लेयर जब बिल्कुल फ्लैश यूज करते हो किसी सरफेस पे, बिल्कुल सामने हो कोई प्रोडक्ट वहां यूज करते हो तो, बिकॉज तुम्हारा जो इंसिडेंट का फॉलिंग है ना, वही रिफ्लेक्शन का फॉलिंग बन जाता है, बिकॉज वहां से वो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है, वो तुम्हारे कैमरे पे दिख जाती है. सो दैट्स द रीजन. एंड ट्राई टू चेंज द एंगल. द फर्स्ट थिंग्स इज कि बिल्कुल सामने से कैमरे के एंगल से होगा तो कुछ भी कर लोगे वो चीजें बनेंगी मेटल पे. हम जब शूट करते हैं मेटल के प्रोडक्ट, यू नो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारा भी कैमरे का भी रिफ्लेक्शन बनता है. इफ यू गाइस एवर शूट द मेटल प्रोडक्ट, कैमरे का बनता है रिफ्लेक्शन, कैमरे तक का रिफ्लेक्शन बनता है. इफ यू एवर सी, अगर कभी आपने कैमरा सामने रख के क्लिक किया होगा तो अगर डिटेल में जाओगे, जूम करोगे, मेटल का प्रोडक्ट होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल सी दैट कि तुम्हारा ट्राइपॉड सा कुछ दिख रहा है. सो वी आर यूजिंग हॉसिंग फॉर इट, जो पूरा ब्लैक बोर्ड से बना होता है. ओनली लेंस विल बी आउटसाइड, सिर्फ लेंस बाहर होता है एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अप. अब क्या हो रहा है, जो भी मेरे कैमरे का एंगल है वही वहां दिख रहा है ना, तो जब लाइट लगाओगे तो लाइट का सोर्स भी दिखेगा ना. जब मेरा कैमरा दिख रहा है तो कैमरे के एंगल पे जब लाइट लगाओगे तो और ज्यादा इल्यूमिनेट होगा ना, सामने से उसका रिफ्लेक्शन और ज्यादा बनेगा, यस. बन जाएगा ना. सो हाँ. ट्राई टू अवॉइड द फ्रंट इल्यूमिनेशन. तुम मेटल पे कभी भी देखना कि मेटल के कोई प्रोडक्ट के सामने खुद खड़े हो जाओ, राइट? कैमरा बन जाओ खुद ही, मेटल के प्रोडक्ट को देखो, सामने ग्लास रखा है, ग्लास देखो, तुम्हारा रिफ्लेक्शन बन रहा है. कोई भी स्टील का ग्लास है सामने, होल्ड द ग्लास, सी योर रिफ्लेक्शन विल बी देयर. बन रहा है ना तुम्हारा रिफ्लेक्शन. क्यों बन रहा है? क्योंकि तुम्हारे ऊपर लाइट आ रही है, वो रिफ्लेक्शन बन रहा है. तो लाइट का तो ऑलरेडी सोर्स दिख रहा है, तो सोर्स तो वहां दिखेगा ना. अगर तुम अपना एंगल चेंज कर दोगे तब नहीं दिखेगा, बिकॉज यहाँ आंख कैमरे की है, ये देख रहा है, तुमने चेंज कर दिया तब तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं और बन रहा है जो तुम्हारे एंगल में नहीं आ रहा है. सो ट्राई टू चेंज द एंगल, है ना. फ्रंट लिट अप करोगे, फ्लैश लाइट में करोगे, कभी भी मेटल प्रोडक्ट फ्लैश लाइट में करोगे, वो क्लियर दिखेगा. So that's the reason they are using the bounce board or something, जहां से कि एम्बियंस में लाइट बाउंस हो जाती है और तुम्हारा फ्लैग वो जो भी इमेज है वो बन जाता है. जब नॉर्मल काइंड ऑफ यू आर शूटिंग फॉर द अमेज़न और दैट काइंड ऑफ थिंग्स, उसमें जब हम शूट करते हैं तो ना. जस्ट रीड इट वंस ना. So try to use a monitor. If you don't have monitor, try to use the magnification button. मैग्निफिकेशन बटन यूज करके क्या होगा कि तुम्हारा जो इंफॉर्मेशन है, जो स्मॉलेस्ट पार्ट में कहीं पर भी तुम्हारा स्पॉट छूटा होगा, द हैंड का स्टॉप स्पॉट या कुछ भी ऐसा, तो इट विल बी विजिबल एंड यू आर एबल टू सी दोस थिंग्स एंड ट्राई टू अवॉइड इट बैक क्लीनिंग इट. उसे क्लीन करके आप सकते हो. और द बेस्ट वे इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनली अगर आप यूज करोगे, वी आर यूजिंग ग्लव्स फॉर इट. ये ग्लव्स होता है जिसमें कि आपके स्टेन और मार्क्स नहीं होंगे. So try to use gloves. नहीं है, then you can wipe it properly and you can use it. So the 4 point that we have discussed in metal product, the lighting, जो major points हैं, the lighting, your source must be bigger. The lighting angle, don't use a frontal light, front facing light use नहीं हुई. It means don't use the lens axis to light up your character, right? दो चीजें हो गई. The third one, to try to the cover up, जो भी लेंस के सामने, जो भी आपके प्रोडक्ट के सामने चीजें हैं, या either
The light should not fall on it or either try to cover it. Either you can use a housing or either we are using a black cloth to cover it up. सिर्फ lens बाहर होता है and the rest of things will be covered with a black cloth. So that will be not visible in your product. नहीं तो तुम्हारे product में वो visible हो जाएगा. And the fifth point is to clean the spot. तो किसी भी product में होगा that must be clean or sharper. Sorry, is the fourth. And the fifth one is the highlight the logo. Metal पे जब logo दिखता है काफी interesting लगता है. So try to highlight the logos. This 5 point is there, right? चलिए कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए. Sorry, one second. Okay, the fifth question is, okay, fifth questions. What are 5 important points you will take care while shooting a source light and your source is candle? Okay, the same questions, the source light, इसमें source light पूछा है the next year, I think it's a question from 2018, right? 18 का question था और 17 का. और उसके एक साल बाद एक और क्वेश्चन था with the same source light, they just changed the source. That was the TV screen. अगर आप लोगों ने previous year question solve किए देखे होंगे, that question they just changed. The question is remain same. They are talking about the source light, but in the next year they changed the source. Before 1 year it was candle, then they change it to the TV screen. अगर आप में से किसी ने भी attempt किया होगा या देखा होगा, there is one more questions related to the source light, and that question was the TV screen का जो flickering है, how you just elaborate those effects, उसके लिए lighting कैसे करोगे? So it may be it's a very popular thing, the source light is. So when we started lighting chapters, right? In which one we decided, we discussed the 3-point lighting, right? So base है lighting का वही हमने decide किया था. हमने discuss किया था, that is key fill and backlight. So what is source light is? Source light, you know, have you seen the practical within the scene, right? Sometimes before shooting, what we'll do, we just establish the source, that the from where light will come. Like from the windows that light will come, or from that the TV the light will come, from that fire bounce light will come, or the candles the light will come. So when you establish those things, that's become the source, right? That's the source light. कि खिड़की से आ रही है, so you just establish the source. Sun is your source. अभी आप क्लासेस ले रहे हो on your laptop, suddenly light चली जाए. Before, जब तक लाइट नहीं गई थी तब तक क्या था, जो एम्बियंस की लाइट थी, whatever the CFL you are using, the tube light or LED, whatever you are using in your home, that's become the source, right? जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है and लाइट गई, अंधेरा हुआ, now the display की लाइट आपके फेस पे आती है, right? Now that display become the source. अब वो डिस्प्ले जो है आपके लिए सोर्स हो गया. सपोज करो ये भी ऑफ हो गया, you just switch on your phone, और फोन का डिस्प्ले आ रहा है, not the display become the source. तो every time जब आप डिसाइड करते हो कि लाइट कहां से आएगी, that is called the source light. Once you decided the source within the scene, कि जो भी प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है ना, जो भी आपके within the scene मान लो दिख रहा है, सपोज करो कि within the scene टेबल लैंप दिख रहा है, कैंडल दिख रहा है, या टीवी आपका दिख रहा है, it's become the practical lights. It's called the practical. जो भी visible होगा within the scene, आपके फ्रेम में अगर दिख रहा है, तो it's called the practical light. But it didn't mean that the always in the source lighting the practical light will be there. जरूरी नहीं है कि आपके हर एक सीन में practical light हो. कि सपोज कोई कैंडल लाइट का आप सीन देखोगे फिल्म में कहीं पर भी, ऑलवेज नॉट द क्लोज अप, इट्स नॉट ऑलवेज इट विल बी विद द कैंडल, कि हमेशा कैंडल फ्रेम में नहीं होगा, बट दिस इज एस्टैब्लिश्ड दैट द लाइट इज कमिंग थ्रू द कैंडल. लाइट कैंडल से आ रही है, जस्ट लाइक दैट द लाइट इज कमिंग थ्रू द विंडोज, कि विंडोज से लाइट आ रही है, वैसे ही हम कैंडल से. तो सोर्स कुछ भी होगा, यू जस्ट डिसाइडेड इट. तो यहाँ पर क्या रखा है हमारा सोर्स? द फर्स्ट थिंग्स दैट इज कैंडल, कि कैंडल आपका सोर्स है. नाउ
before making the source, the 4 things that we discussed in terms of lighting, 4 चीजें होती थी, right? अगर किसी को याद होगा, we started with the what? The intensity, right? अब कोई भी light करोगे, to recreate or replicate that the illusion of that the light is coming through the candles. Through your eyes, the things is visible. जब candle घर में जलाओगे, everything is visible. जो भी दिखना है दिखता है, certain contrast में चीजें दिखती हैं, right? But once you switch on your camera, is it visible? No. So you have to do lighting for that. So it means you have to create those illusion that the light is coming through the candle only. But you have to do lighting for that. So जो उसका एस्थेटिक है वो तो रहेगा ना, जो कैंडल का एस्थेटिक है वो रहेगा. So once you switch on, sorry, जब आप कैंडल चलाते हो, at that point of time, just forget about the cameras. Which kind of light you feel, which kind of intensity you feel, आपको कैसा फील होता है, कैसी इंटेंसिटी देखते हो आप? इंटेंसिटी होगी ना लाइट की, as the brightness, intensity mean the brightness, that the candle have the certain brightness, right? कैंडल में certain Yes, sir. brightness होगा, right? तो पहला तो आप क्या देखोगे कि कैंडल की ब्राइटनेस देखोगे कि ऐसा भी नहीं है कि कैंडल जलाया और पूरे घर में लगा कि एकदम वो एलईडी जला दी है, ऐसा भी नहीं होगा. सो इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी, राइट? इंटेंसिटी कम होगी. सो इट मींस देयर विल बी कॉन्ट्रास्ट. कॉन्ट्रास्ट होगा ना कि इतनी ज्यादा लाइट इल्यूमिनेट नहीं हुई, फेस पे जाएगा, फिर धीरे धीरे वॉल पे कम जाएगा, काइंड ऑफ सर्टेन एरियाज तक डार्कनेस होगा, एक सर्टेन एरिया तक इल्यूमिनेशन होगा, राइट? द कैंडल की जो प्रॉपर्टीज है, जब आप कैंडल जलाते हो, ऐसा नहीं यहाँ जला और पूरे रूम में जो अंधेरा. सो यू हैव टू डिसाइड द व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी, कि इसकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, द फर्स्ट थिंग्स. सेकंड, लाइट के बारे में क्या सोचते हैं हम? द सेकंड पॉइंट इज सर हार्ड शैडो ही होगा. द क्वालिटी, राइट? देन वी डिसाइडेड द क्वालिटी. क्वालिटी क्या होगा, लाइट की क्वालिटी क्या होगी, कैंडल की क्वालिटी क्या है? सर वार्मर लाइट होगा थोड़ा. No, I'm talking about the quality. I'm not talking Hard, about sir, the hard, color. hard, hard. सर बोला Quality ना will कि be harder. Yeah. Light की quality क्या होगी? Hard होगी. 2 पॉइंट आपने यही तो डिस्कस कर दिया. कैंडल होगा तो the quality of light will be harder, right? Light की quality क्या होगी? वो hard होगी. Because जब आप कैंडल जलाते हो, the intensity ज्यादा नहीं है. But because the source is smaller, so that's the reason it will produce the harder shadows. इसलिए shadows तुम्हारे hard हो रहे हैं, right? That's the main reason वो shadows आपका hard हो रहा है. तो आपने दूसरा भी decide कर लिया क्या? Sorry, क्या आपका हो गया? Quality of light, right? कि आपकी light की quality होगी. Third क्या करोगे? The which kind of color is there? Will give you the warm color. Color warm ही होता है ना इसका. The which white balance will shoot. आपको थोड़ा सा वार्म दिखाना होगा. which kind of light you are using depend on it, कि आप कौन सी लाइट यूज करो, इसके अकॉर्डिंग आप चीजें चेंज कर सकते हैं. बट राइट नाउ हियर विल डिस्कस ऑन द डायरेक्शन. अब सपोज करो कि कैंडल कहीं ना कहीं फ्रेम में होगा, राइट? तो एवरी प्रैक्टिकल लाइट्स हैव द सर्टेन पोजीशन. तुम टेबल लैंप यहाँ रखते हो, जो ट्यूब लाइट से ऊपर लगी होती है. At least the soft or hard, whatever the shadows is created by the lights. Through the shadows, you know the direction, right? Sunlight जब बिल्कुल डे में होता है 12 AM के 12 PM के आसपास, 1 PM के आसपास, which kind of shadows is falling? At the evening, which kind of shadows? Through the shadows, you know the time. Shadows से time पता चल जाता है ना आपको. So it means through time पता चलने क्या मतलब? Through the direction, you know where is sun right now. So you know the sunset. कि सनसेट में डायरेक्शन क्या होता है. इट मींस कि जिस लाइट का आप सोर्स बना रहे हो उसका डायरेक्शन आपको फिक्स करना पड़ेगा ना, तभी इल्यूजन क्रिएट होगा दैट द लाइट इज कमिंग थ्रू दैट वे. तभी पता चलेगा ना कि सपोज आपने कैंडल यहाँ जलाया, अपने लेफ्ट हैंड साइड में जलाया, इट इज लोअर देन मी, किसी स्टैंड पे रखा हुआ है, नीचे है, और आपने क्या किया, वार्म कलर कर दिया, लाइट हार्ड कर दी, बट लाइट आपने साइड से ऊपर से कर दी है. नाउ शैडोज इज फॉलिंग ओवर हियर. रेबरांड सा बन रहा है, शैडोज यहाँ से आ रहा है, ऊपर से यहाँ नीचे आ रहा है शैडो. डू यू फील इट्स लुक लाइक द डायरेक्शन इज रिमेन सेम, और किसी को भी लगेगा कैंडल से ही लाइट आ रही है? No, sir. इसमें डायरेक्शन पता चलेगा, पता चल जाएगा गलत डायरेक्शन से लाइट आ रही है. इट मींस व्हाटएवर द डायरेक्शन ऑफ योर सोर्स, just fix the light on the same direction, that the create the illusion that the light is coming through that way. उसी कैंडल से लाइट आ रही है, it means direction will remain same. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट नॉट लाइक कि आप बिल्कुल चेंज कर दोगे कि बिल्कुल लो एंगल से कर दिया, बिल्कुल टॉप से कर दिया. लिटिल बिट यू कैन मैनिपुलेट इट, बट नॉट टू मच.
कि शैडोज का डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा, एनीवन कैन रिकॉग्नाइज फ्रॉम वेयर लाइट इज कमिंग। कभी भी देखना फोन की जो लाइट की इंटेंसिटी सेट करते हैं, व्हेनेवर यू आर डूइंग द लाइट, आप खुद देखना डार्क एरिया में जाके फोन की लाइट ऑन करके देखना विच काइंड ऑफ लाइट इज कमिंग। डिस्प्ले है, फ्लैट है, बिकॉज योर नोज एंड योर फेस, दिस एरिया इज नियर बाय द फोन, सो इसका जो इल्यूमिनेशन होता है वो डिफरेंट होता है और इसका अलग होता है। दिस एरिया विल बी द डार्कर, ये डार्क जोन में जाता है ना। सो थ्रू द डायरेक्शन, अब जब हम लाइट करेंगे इसकी तो इसके डायरेक्शन ऐसा ही होगा कि ये इंटेंसिटी हमें दिखे। मॉनिटर से लाइट आती है, वी आर डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग्स, तो हैंड पे लाइट ज्यादा होगी, राइट, फिंगर पे लाइट ज्यादा होगी कंपेयर टू योर फेस। सो यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन कि बिल्कुल जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, यू हैव टू यूज सेम डायरेक्शन कि उसी डायरेक्शन से लाइट आए। एंड अब एक और पॉइंट है कि आपका सोर्स स्मॉलर है, राइट। तो सपोज करो विल नॉट गोना यूज अ लाइट दैट हैव द बिगर सोर्स, कि तुम वहां पर ट्यूबलाइट यूज नहीं कर लोगे, वहां पर तुम आरजीबी या स्काई पैनल नहीं यूज कर लोगे, तुम्हारा कैंडल का सोर्स क्या है, छोटा है। तो ट्राई टू यूज अ लाइट दैट लाइट हैव द स्मॉलर सोर्स। जिस लाइट का सोर्स भी छोटा होगा वही हार्ड शैडोज प्रोड्यूस करेगा ना। सो हियर यू जस्ट रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ दोज लाइट्स। तुम सिर्फ इंटेंसिटी रिड्यूस करोगे, विल नॉट मेक दैट लाइट बिगर। If you use another diffusion material that is bigger, क्या होगा, लाइट की क्वालिटी सॉफ्ट हो जाएगी and candle have not that much of softness in terms of shadows। तो ये भी नहीं है कि हम क्या करेंगे, लाइट बहुत बड़ा लाइट लगा दे और उसे कैंडल का सोर्स बना रहे हैं। तो इसकी इंटेंसिटी और इसकी इंटेंसिटी में डिफरेंस होगा, दैट्स अनदर थिंग्स। इंटेंसिटी आप रिड्यूस कर सकते हो, बट रिड्यूसिंग दोज इंटेंसिटी थ्रू द नेट ओनली। आप सिर्फ क्या करोगे, सोर्स वही रहेगा, छोटा ही रहेगा, डोंट मेक सोर्स बिगर। सोर्स जैसे ही बड़ा बना, पता चल जाएगा शैडोज जो है सॉफ्ट हो गए हैं। एंड कैंडल यू फील दैट शैडो इज नॉट यू नो द सॉफ्टर, शैडोज सॉफ्ट नहीं होते। Sorry, one second. Okay, the second things, once that candle or whatever the source में, अभी candle आपके example में इसलिए कर रहा हूँ, but anything it could be in source, or you can say if they are using the practical word, right, कि practical light, अभी यहाँ पर क्या क्वेश्चन में यूज किया है, your candle will be the source, right? क्वेश्चन ये है ना, source lighting and your source is candle. It didn't mean that कि तुम, अब ये तुम पे डिपेंड करता है that candle is visible within the frame or not. इट्स टोटली डिपेंड अप टू यू। अभी कैंडल को आप फ्रेम में रख भी सकते हो, कैंडल आपके फ्रेम में नहीं भी है, यू आर जस्ट क्रिएटिंग एन इल्यूजन और मेकिंग अ सोर्स की कैंडल की लाइट आ रही, दोनों काम हो सकता है। बट इफ दे यूज अ वर्ड कॉल्ड द प्रैक्टिकल लाइट इज कैंडल, सपोज if they use a word practical, it means they are saying that that light is visible within the frame। वो जो लाइट है वो आपके फ्रेम में दिख रहा है। now the things have been different। अब दोनों में क्या होगा, आपके एक्सपोजर में चीजें चेंज हो जाएंगी दोनों में। इफ that candle is visible in your frame, now you have to set your exposure according to your source, because candle को ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बर्न दिखा देंगे, है ना, सोर्स इतना ज्यादा बर्न आउट भी नहीं दिखना चाहिए और बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं दिखेगा, राइट। जब कैंडल तुम एक्सपोज करते हो, कैंडल का सिर्फ सोर्स, जस्ट थिंक अबाउट इट ना, कैंडल का सिर्फ सोर्स दिख रहा है जहां कैंडल जल रहा है, दैट फ्लेम ओनली, राइट, सिर्फ फ्लेम दिख रहा है। डू यू फील दैट उस फ्लेम की इंटेंसिटी इतनी होगी कैमरे में अगर वो सिर्फ फ्लेम दिख रहा है तो कहीं से ये इल्यूजन आप क्रिएट कर पाओगे दैट द लाइट इज कमिंग थ्रू दैट सोर्स। इट मस्ट बी उसका इल्यूमिनेशन थोड़ा दिखेगा, थोड़ा कैंडल दिखेगा, उसके नीचे की थोड़ी सी लाइट दिखेगी, देन यू आर एबल टू सी दैट ओके नो इट्स फाइन, ये लाइट आ रही होगी। बट अगर सिर्फ कैंडल का वो दिख रहा है, फ्लेम ही दिख रहा है, डू यू फील दैट कि वो इतना दिखेगा? सपोज करो आपने एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, काइंड ऑफ ग्रीननेस उस लाइट में आ रही है, तो क्या वो फिजिबल होगा कि ये लाइट, या फिर एज एन यू नो द जो देख रहा होगा उसके लिए कि ये लाइट इसी से आ रही है, बहुत ज्यादा बर्न कर दिया आपने, आपका वो टेक्सचर भी नहीं दिख रहा है आपके कैंडल का, बहुत बर्न कर दिया, बहुत आपने अंडर एक्सपोज कर दिया है। अगर प्रैक्टिकल है, इट मींस यू हैव टू सेट योर एक्सपोजर अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल्स। वो ना ओवर दिखना चाहिए ना अंडर दिखना चाहिए, जैसा नॉर्मल आपके आईज को कैंडल दिखता है एज इट इज, वैसा कैमरे को भी दिखना चाहिए, सो इट कैन क्रिएट द इल्यूजन दैट द लाइट इज कमिंग थ्रू द वे। बहुत ओवर हो जाएगा, सपोज करो ना तुम फ्रेम में देखते हो ना कि कई बार सीन में देखते हो कि कैंडल देखा होगा आप लोगों ने, राइट, विद इन द सीन,
बट कभी देखा है कैंडल बहुत ज्यादा बर्न कर रहा हो? See, this is from the Trikal, right? See this image ना. अगर इन टर्म्स ऑफ कैमरा एक्सपो ना, अगर हमने कैंडल यूज किया है तो कैंडल में तो ऐसा नहीं हमने कुछ लगाया हुआ है. कैंडल की तो अपनी इंटेंसिटी होगी, दैट इज फिक्स, नॉट डिपेंड अपॉन आप कैंडल कैसा यूज करो. आप हैवी कैंडल यूज करोगे, वैक्सेस का थोड़ा सा वो होगा, उसका इल्यूमिनेशन थोड़ा ज्यादा होगा. बट इन टर्म्स ऑफ कैमरा यू हैव टू सेट इट अकॉर्डिंग टू योर सोर्स. तो जो भी सोर्स है और वो विजिबल है विद इन द फ्रेम बिफोर डूइंग एनी सोर्स लाइट. इफ देयर इज अ प्रैक्टिकल लाइट्स, अगर प्रैक्टिकल है तो यू हैव टू सेट योर एक्सपोजर अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल. नाउ सी दिस इमेज ना, यहाँ क्या लग रहा है? कैंडल बहुत ओवर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? No, sir. बहुत अंडर भी नहीं लग रहा है, दोनों नहीं लग रहा है. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, द त्रिकाल. आप लोग वहां की फिल्म देख लोगे, बट वॉच दिस फिल्म द त्रिकाल, हाउ दे यूज द कैंडल लाइट. द बेस्ट एग्जांपल फॉर कैंडल लाइट. अशोक मेहता इज डीओपी, he shooted it. और just forget the name of the director. So you guys can watch this film for the candle light only. You see the source light basically, establish the source through the candle. So अभी जो ये इमेज आप देख रहे हो ना, इसमें क्या है, ना ओवर दिख रहा है ना अंडर दिख रहा है. It means you have to set your exposure whatever the source light within your frame, उसके अकॉर्डिंग सेट आपको करना पड़ेगा. So in terms of candles, आपके पास वैरायटी ऑफ कैंडल्स होने चाहिए. बिकॉज कोई छोटा कैंडल लेके आया, उसका एक्सपोजर सेट नहीं हो रहा है, बहुत कम दिख रहा है. बहुत हैवी लेके आ गए, वो बहुत ज्यादा दिख रहा है. डायरेक्टर कह रहा है यू हैव टू शूट ऑन f2.8 और f4, है ना. सो द मेनी थिंग्स दैट इन्वॉल्व. तो इट्स जस्ट अबाउट अ हिट एंड ट्रायल कि आप कौन सा वहां पर रखोगे जिससे उसका एक्सपोजर सेट हो जाएगा, राइट. तो कई बार क्या होता है कि आप कैंडल जो आप यूज कर रहे हो विद इन द सीन, अगर आप यूज कर रहे हो तो डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडल्स जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेंसिटी देता है, या काइंड ऑफ कई बार हम क्या करते हैं, कैंडल के पीछे कैंडल छुपा देते हैं. उस फ्लेम के पीछे जब फ्लेम छुप जाता है तो इंटेंसिटी थोड़ी सी हाई होती है और वो आप हमें दिख जाता है. तो कई बार चिटिंग भी होता है, कई बार डिपेंड अपॉन द कैंडल्स, व्हिच काइंड ऑफ कैंडल्स वी आर यूजिंग. अगर हमें वो नहीं मिल पाता है तो वी पुट कैंडल्स सम यू नो इन लैंप और समथिंग एल्स. जब लैंप में रखोगे तो सोर्स लुक बिगर लिटिल बिट. सो इट्स जस्ट हिट एंड ट्रायल. तो हम ये भी कर सकते हैं. बट इफ सपोज अभी आपका जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ कैंडल पूछा हुआ है, तो most important things is you have to set your exposure according to whatever the source you are using. Suppose करो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कैंडल नहीं है, टेबल लैंप है, राइट. नाउ द कैंडल इज नॉट देयर, टेबल लैंप. टेबल लैंप में क्या लगेगा? बल्ब लगेगा. जस्ट ऊपर की सारी चीजें वही होंगी, डायरेक्शन वही होगा. क्वालिटी क्या हो जाएगी टेबल लैंप में? इट विल बी लिटिल बिट सॉफ्टर, राइट. Diffuse होगा हो ना, जाएगा sir. बिकॉज डिफ्यूज जैसे ही होगा द सोर्स बिकम बिगर. बिकॉज जैसे ही आप टेबल लैंप में किसी में देते हो तो क्या होता है, वो अंदर डिफ्यूजन हुआ तो डिफ्यूज होगा, सोर्स बिकम बिगर, सोर्स बिकम बिगर, इट विल बी लिटिल बिट सॉफ्टर देन द कैंडल लाइट. मैं ये नहीं कर रहा हूं पूरा वो हो जाएगा, बट इट विल बी लिटिल बिट सॉफ्टर बिकॉज द डिफ्यूज, नाउ द सोर्स इज बिकम बिगर. सो सपोज फॉर एग्जांपल यू कैन पुट एनी काइंड ऑफ बल्ब इनसाइड. तुम उसमें कुछ भी रख सकते हो. तुम टंगस्टन के हिसाब से लिखना चाहते हो टंगस्टन लिख दो. इट्स टंगस्टन हैव द मोर ड्रामेटिक थिंग्स बिकॉज वार्म और कूल का जो एक फील है वो आता है. सो ट्राई टू रीड कि तुमने टंगस्टन बल्ब लगा रखा है उसमें. इफ दे आस्क फॉर, अगर या कैंडल के बदले सोर्स बल्ब भी हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी दे हैव आस्क्ड फॉर द टीवी, मे बी दे आस्क फॉर द लैपटॉप, बिकॉज सोर्स लाइट से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मे बी दे कैन आस्क फॉर द टेबल लैंप. टेबल लैंप अगर होगा तो क्या करेंगे? सो अगेन ऊपर की दोनों चीजें वही होंगी, द इंटेंसिटी, द डायरेक्शन, वो तो आपको पता है. नाउ हियर व्हाट थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, कि अभी मैंने फिर वही कहा था कि यू हैव टू सेट योर एक्सपोजर अकॉर्डिंग टू योर source light. Now here what we will do, either अगर आपका प्रोडक्शन ऐसा नहीं तो we will use the different kind of the different kind of intensities of bulb. different intensity के bulb we will use, like we use the 20 watt, 40 watt, 60 watt and 100 watt. और we'll just try it कि किस पे हमारा एक्सपोजर सही आ रहा है. if you are using the 60 watt, हमें दिख रहा है कि यार सरफेस ना बर्न कर रहा है, तो you have to manipulate with the exposure. but एक्सपोजर में डायरेक्टर ने बता दिया मुझे 2.8 पे शूट करना है, राइट. तो आप वो भी नहीं कर सकते हो, उसको नहीं बढ़ा सकते, एक्सपोजर से कंपनसेट नहीं कर सकते हो. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट यू कैन यूज अ डिफरेंट बल्ब्स, लाइक यू कैन यूज द 40 watt, यू कैन यूज द 20 watt. बट अब होता क्या है कई बार कि अगर तुम 20 watt यूज कर रहे हो तो मेनी टाइम्स व्हाट आई फेस इज, जब 20 watt यूज किया, सपोज आई एम शूटिंग ऑन 2.8, इट्स लुक टू डार्क, देन 20 के बाद सीधा आ जाता है 40, राइट. 40 में क्या हो रहा है, 40 आप जैसे यूज करोगे वो अब थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है.
इट मीन्स मुझे लगा यार मैं 30 के आसपास यूज करूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज थिंग्स, कि वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 30 कैसे बनाओगे? नाउ अगेन यू हैव टू कट द पेपर्स एंड गेटवे पेपर्स, पुट इनसाइड द बल्ब, ट्राई टू हिट एंड ट्राई डिफ्यूज इट, उसमें टाइम लग जाता है। इट्स ओनली फॉर द वन द सोर्स लाइट। अब सोचो ऐसे अगर 2-4 सोर्स हो जाए, 2-4 बल्ब लगे हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सीन लंबा है, लॉन्ग शॉट है, देयर इज अ 4 और 5, इतने काट काट के सबका एक्सपोजर सेट करते जाओगे, इट विल टेक टू मच टाइम, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। सो द थिंग्स इज कि अब क्या करोगे आप, एक चीज आता है कॉल्ड द डिमर, राइट? जैसे आपके फैन के साथ रेगुलेटर है ना, वैसे ही डिमर आता है। इवन यू कैन मेक इट योर ऑन सेल्फ, अपने आप बना सकते हो, आप वो डिमर बना सकते हो। डिमर क्या है कि सर्टेन इंटेंसिटी रिड्यूस करता है डिमर, राइट? अगर आपने देखा होगा कहीं सेट पे ऐसे भी, तो एग्जैक्टली वो 40 से 30 नहीं करता, वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है, 40, 39, 38, 36 ऐसे वॉट वो धीरे धीरे डिफ्यूज करते जाता है, राइट? तो जैसे जैसे वो डिफ्यूज करते जाएगा, अब क्या होगा, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, राइट? डिफ्यूज को तो सेट कर सकते हो ना, जहाँ जितनी इंटेंसिटी मुझे चाहिए फैन की तरह उतनी ही मैं रखूंगा। So try to use, if you are using the source light, जो source light में suppose this kind of water, try to use a dimmer. Dimmer is the best option. It will save your time. Also, it will give you the exact intensity that you want. तुम उसमें 100 watt लगा लो, that's another things. और होगा क्या उसमें, जब तुम 100 watt लगा सकते हो, 200 लगा सकते हो, it's totally depend upon it. कि suppose you are shooting on 24 frame, 25 frame, तो तुमने क्या किया, उसकी इंटेंसिटी कर दी 40% और 50%, और तुम्हें डायरेक्टर ने बोला कि नहीं मुझे 100 फ्रेम चाहिए, सेम बल्ब, सिर्फ नॉब घुमाना है, यही होगा ना, सिर्फ रेगुलेटर घुमाना है, डिमर पे डिमर हाई किया, नाउ यू गेट द मोर इंटेंसिटी बिकॉज़ यू आर शूटिंग हायर एफपीएस, तो शटर स्पीड बढ़ गया, यू कंपनसेट इट, यू नीड मोर लाइट, सोर्स वहीं का वहीं रहा तुम्हारा, सोर्स का ना बल्ब चेंज करना पड़ा ना कुछ, सिर्फ डिमर बढ़ाया, काम आपका हो गया। ओके, वन मोर थिंग, बट यहाँ पर एक चीज और तुम मेंशन कर सकते हो टेक्निकली। तुम किसी भी लाइट को सपोज करो, द टंगस्टन बल्ब यू आर यूजिंग दैट हैव द सर्टेन कलर टेम्परेचर लाइक द 3200 जो भी आप यूज कर रहे हो, इफ इट विल बी डिमर ऑन डिमर, जैसे उसे डिम करते हो ना, उसका कलर टेम्परेचर भी कम होता है। जितना लाइट को डिम कर, सपोज यू आर यूजिंग अ लाइट व्हिच हैव द कलर टेम्परेचर 3200 ऑन द हायर इंटेंसिटी, जैसे तुम लोअर करते जाओगे ना, सर्टेन नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ स्किन टोन यू फील दैट वंस यू आर यूजिंग द डिमर, तुम देखोगे उसके कलर की क्वालिटी में धीरे धीरे चेंजेस आने लगते हैं। तो जितना डिक्रीज होगा कलर टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो इफ यू सपोज यू आर राइटिंग अबाउट द व्हाइट बैलेंस, इट मे बी कि पूछ सकता है, तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर हम किसी भी लाइट का, अगर कोई लाइट कह रहा है कि इस लाइट इज 3200 केल्विन जो कलर टेम्परेचर है, और वो ये भी कह रहा है कि उसे आप डिम कर रहे हो, इट मींस आपका कलर टेम्परेचर भी कम होगा, है ना? जैसे आप लाइट डिम करोगे आपका कलर टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। सो इट मे भी, अगर थोड़ा सा वहां क्वेश्चन में कुछ ये कर दे इन टर्म्स ऑफ व्हाइट बैलेंस, तो आप ये भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ कंपोजिशन ऑफ कैंडल्स, जस्ट रीड इट वंस ना। Okay. Okay, sometimes what we can use candle, अभी हमने source बताया ना, कभी sometimes we don't use candle as a source or something, that kind of lights or practical lights जो आप use कर रहे हो, sometimes we are using it for creating a depth। होता है ना, कभी कभी backlight देखते हो कि white shot है, there's a backlight,
or tungsten bulb is within the characters or behind the characters. So you feel अगर वो bulb off हो जाए तो there's no feel of the depth. डार्क में कोई शूट करे, अंधेरा है, देयर इज नो बल्ब और टंगस्टन बल्ब, अब जरूरी नहीं कि दैट टंगस्टन बिकम किकर और हेयर लाइट, ओके, तो वो जरूरी नहीं कि वो हो जाएगा, बट इट विल गिव यू द डेप्थ, ओके. सो कंपोजिशन ऑफ कैंडल इज कि आप उसे विद इन द फ्रेम रखना चाहते हो, कई बार बिहाइंड द कैरेक्टर रखा बिकॉज वेरी डार्क, तो क्या हो रहा है, फ्लैट के बदले आपको एक डेप्थ दे रहा है बिकॉज देयर इज अ फोरग्राउंड इज कैरेक्टर, देन इन बैकग्राउंड देयर इज अ कैंडल, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रास्ट कैंडल भी विजिबल है, कैरेक्टर पे आपने लाइट भी कर दी है, सो यू फील सर्टेन डेप्थ, एक डायमेंशन मिल जाता है बाय द प्लेसमेंट ऑफ द कैंडल्स. So it's totally depend up to you at the time of explaining. You want those candles inside the frame or outside the frame. Obviously, जब candle जलेगा तो रात में ही जलाएंगे, दिन में जलाएंगे नहीं. If you are using source light, it's not for the decoration. Then तभी होगा. और अगर they used the word practical, it means that candle will be visible, or that candle should be visible within the frame. और within the frame होगा तो उसका exposure आपको set करना पड़ेगा. सो सोर्स में कुछ भी आ सकता है, थिंक अबाउट इट. और क्या हो सकता है ना, सोर्स में और कौन सी लाइट आ सकती है. देयर इज वन मोर क्वेश्चन दैट द डिस्प्ले हो गया आपका, जो फ्लिकरिंग का है वो हो गया आपका. अब यू जस्ट फील योरसेल्फ, आप डिस्प्ले जो आपका ये लैपटॉप पे जब आप देखते हो, रादर जब फोन पे देखते हो, इट मे बी दे कैन आस्क, तो सी द क्वालिटी, सी द कलर, दो तीन चीजें सेम होगी, आप डायरेक्शन वही होगा, डायरेक्शन वही लिखोगे, क्वालिटी वही लिखोगे, कलर टेम्परेचर वही लिखोगे, ये तो तीन चार चीजें हो गई, ऑब्जर्वेशन है ना. वो ऐसे ही होगा, सी द डिफरेंस कि जब आपका हैंड नियर बाय द मॉनिटर होता है, हाउ हार्ड लाइट इट इज, कि हैंड पे ज्यादा आती है, फेस पे कम आता है, आपके चेस्ट पे ज्यादा आता है, बिकॉज इट्स अबाउट द पॉजिशनिंग ऑफ योर सिस्टम, है ना. तो ये आप बाकी और चीजों के बारे में इन टर्म्स ऑफ सोर्स लाइटिंग आप लिख सकते हो. एंड व्हाट आई सजेस्ट, ट्राई टू वॉच दिस फिल्म फॉर द सोर्स लाइटिंग. त्रिकाल. And now the अभी क्या होगा, अच्छा, okay. So anyone want to ask anything, just ask me, no? Excuse me, sir. Yeah. So we were talking about source lighting and we talked about the candle. So Yeah. there is one more characteristic of a candle, that there is a very random increase and decrease in the intensity of light when we talk about. It's a kind of wave. It's Yes. look, sometimes people are creating that flicker effect, right? But no, it's not visible. अब लोग करते हैं use, but usually we not prefer of it. कि वो जो इंटरनेट देखते हो, थोड़ा सा वेव आया and the little bit the shakiness is there, थोड़ा सा वो बढ़ेगा, वेव घटेगा, kind of. ये ज्यादा visible किस में होता है? Once you are using a source like firebomb. Yes, sir. Like fire, in fire it's more visible, but sometimes it's the candle, no? Candle है या दूर में रखा हुआ, there's a more candle is over there. Kind of, if you want to create, you can create it, but most of the time, what I usually prefer, I didn't Yes, sir. use those kind of flicker. There's a term now. अब क्या है कि अब light ऐसी आ गई जो flicker effect दे देगा, but before that, in conventional light, we are using it in a different way by putting hand in front of the light and create certain kind of wave, because the in intensity would decrease, increase नहीं होता. Wave जो light का air के कारण क्या होता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होता है, तो Yes, sir. वो wave थोड़ा सा create होता है, and that wave you can create with your hand, or sometimes we are using it on the gelatin paper. We cut the gelatin paper and make a small pop, the lines बनाते थे. I just wave little bit, we just give the wave on that paper. So क्या होता था कि जहाँ कटा हुआ है वहां से थोड़ी सी light hard चली जाती थी. Again there is a diffusion material जो हमारा filter होता था, again there is a filter. So वो wave भी हम बना के create करते थे, but nowadays it's not working. If you want to write about it, you can write it. If you want to create a wave through your hand, you can create it, right? So वो लिख सकते हो, it's not necessary. Oh, okay, But sir. right Thank now, you. अब जो आप देखोगे ना, उसमें अभी इतना फील नहीं होता है कि फेस पे फ्लिकर होना चाहिए, वो होना चाहिए. बट टेक्निक्स हैं जो आ गई हैं, है ना, they are using. So, like when you said that it does not matter a lot. So for Yeah. the white screen, it might. But so when we are when we are dealing with a close-up or a Close up, telephoto, that point you can, once you are doing close up shot, at that point of time you can use it, but वो काफी ना irritating सा लगता है, because once you are taking close up, that time candle होता नहीं है, yes, sir. right? That time because practical not visible, तो उसके moment तो हमें दिख नहीं रहा है. Yes, sir. उसके moment जब नहीं दिख रहे हैं तो because there is no much more air. कैंडल को तुम कुछ देर जला के छोड़ दो, if there is no air, कुछ वेव नहीं होगा.
कैंडल को No, आप so घर में जला के छोड़ते हो तो अगर वेव नहीं आ रहा है, एयर का कहीं से कुछ वो नहीं है बहुत ज्यादा, तो नॉर्मल में वो वेव नहीं करेगा। अगर आपका फैन नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, तो काइंड ऑफ उतना वेव उसमें नहीं होता है कि वो बिल्कुल आंख को दिखाई दे ऐसा। पहले हम क्रिएट करते थे बिकॉज मोर कैंडल्स वी आर यूजिंग, ज्यादा कैंडल्स लगाते थे, इल्यूमिनेशन उसका दिखाना होता था। नॉर्मली आप कैंडल में भी शूट करोगे ना आईएसओ रेंज बढ़ा के, फिर भी कम विजिबल होगा आपको फ्लिकर। तो कई लोग यूज करते हैं, कई नहीं करते हैं, टोटली यू नो इट्स द पर्सनल कॉल। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं तुम्हें फ्लिकर यूज करना चाहिए, इट्स टोटली पर्सनल कॉल। यू वांट टू क्रिएट इट, यू कैन क्रिएट does इट। the word flicker, go right with the No, candle? this is not the flicker, is the kind of wave that created. Yes, So it's sir. about the intensity. In terms of intensity, it will little bit high or little bit low because of the wave of air. वो क्या करता है कि उसको because क्या हो रहा है कि certain length में कैंडल जल रहा है, right? एरिया बड़ा है छोटा है जो भी इंटेंसिटी है, वो एयर का प्रेशर बना, वो देखो कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा हो जाता है, राइट ना। सो वन मोर पॉइंट दैट आई जस्ट मुझे याद आ गया कि इससे रिलेटेड ही कि जब भी कभी शूट होता है ना, आप एक पॉइंट ये भी यूज कर सकते हो, ट्राई टू यूज कैंडल बिफोर शूट। 10 मिनट पहले उसे जला लो जो रियल शूट होता है उससे पहले, बिकॉज जब वो ज्यादा जलता है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है। वैक्स के अंदर जो वो होता है ठीक The wick gets बिफोर शूट, longer. हाँ बिफोर शूट ऑन बर्न इट, की तभी मत जलाओ। जब ज्यादा हो जाता है तो उसकी वो इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है। तो कई यूज करते हैं, कई नहीं करते हैं, ऐसा इट्स अ पर्सनल कॉल, इट्स टोटली पर्सनल कॉल। And also, sir, while you were telling us about that metal reflection thing, you asked us that modifying light will Yeah. give us better results. Yeah. Sir, so by modifying lights, we mean like using the cutters, using the skirtings, using the grids. using the you know kind of materials जिसका रिफ्लेक्शन उस पे बन रहा है, so that's a modification. अगर मैं कटर यूज करता हूं, आई एम मेकिंग अ शार्प एज ऑन इट बिकॉज sir. गेटवे का रिफ्लेक्शन बना देना है, यूज द कटर, सो आई यूज द शार्प एज। कोई पैटर्न बना रहा हूं उस पे, अगर मैं Yes. कोई और टाइप का डिफ्यूजर ग्रिड या कुछ और ले रहा हूं तो आई एम जस्ट मेकिंग अ ग्रेडिएशन ऑन इट। So it's Okay. modification, it depend upon which kind of material and which kind of surface of that material have. So that's the modification कि वो जब आप करोगे तो आप उसका सरफेस कैसा है, उसका रिफ्लेक्शन। सपोज तुमने थर्मोकॉल रखा, थर्मोकॉल का डिफरेंट टेक्सचर आएगा उसके ऊपर, राइट। थर्मोकॉल का रिफ्लेक्शन जो है उसके अपने पर के एक डिफरेंट रिफ्लेक्शन आएगा। आप एक सपोज कॉटन का कोई क्लॉथ रखो, उसकी ग्लॉसीनेस का एक अलग इफेक्ट आएगा, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो रिफ्लेक्शन के लिए यूज कर रहे हो उसका सरफेस कैसा है, उसका टेक्सचर कैसा है, वो उस पे वो चीजें डिपेंड करेंगी। तो जो मॉडिफिकेशन है हम अपने रिफ्लेक्शन वाले से भी करते हैं। जैसे कार में देखते हो ना, एक लाइन सी आती है, ऐसे कर्व सा बना हुआ, ऐसा कुछ आता है ना। Yes, sir. तो दैट्स द काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन की यूज तो बड़ा सा किया हुआ है, बट कहीं ना कहीं एक एंगल से कुछ बनाया हुआ है जिससे कि जब कार पास होती है तो वो एंगल उस पे बनता है, डोर पे, सेकंड वाले डोर पे ऐसे लाइंस बनते हैं ना। दैट इज नॉट विजिबल जब आप कार परचेज करते हो तब नहीं दिखता ना। Yes, sir. हाँ, तो वो दैट्स अ मॉडिफिकेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस मॉडिफिकेशन, वो मॉडिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। Okay. गाइस, सो द नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मेल मिल गया होगा। Yes, sir. हाँ, द नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन संडे। तो आप लोगों ने नहीं भेजा, एक आई थिंक अतुल आपने भेजा था ना। Yes, sir. Yes. ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इंडिविजुअल आपको मैं मेल कर देता हूँ, बट द फ्यू पॉइंट्स जो आपने इसमें डिस्कस किया था ना, वो जी। ठीक था, अपने प्रोडक्ट का दिया, बट इट्स लुक योर प्रोडक्ट लुक फ्लैट, जस्ट लुक योर प्रोडक्ट इट्स लुक वेरी फ्लैट। आपने sir. ग्रेडिएशन नहीं रखा है। द रीजन इज आपने फ्रंट लाइट जो है थोड़ा साइड लाइट नहीं यूज किया आपने, वो साइड से भी पूरे पे लाइट दे दी है आपने। तो ट्राई टू यूज बैक लाइट, जिससे क्या होगा कि ग्रेडिएशन क्रिएट होगा। आपका पूरा का पूरा बिस्किट के ऊपर भी जो है ना वो फ्लैट ही लग रहा है, टेक्सचर्ड नहीं आ रहा है बिस्किट का, राइट। आपने जो इमेज भेजा है जी। ग्रेडिएशन नहीं है। सो डोंट मेक इट फ्लैट, फ्लैट करोगे तो फिर कमर्शियल हो जाता है, वो ई कॉमर्स वाले वेबसाइट के लिए हो जाता है, ठीक है। बाकी आपके लेंसिंग का जो था, आपका एस्पेक्ट रेशियो का आइडिया सही था, है ना। आपने जो Okay, sir. एस्पेक्ट रेशियो एक्सप्लेन किया वो भी सही था। लाइटिंग को थोड़ा और मॉडिफाइड करना है। Okay, तो sir. जब Okay. लाइटिंग यूजेस मॉडिफाइड द लाइटिंग पॉइंट्स ना, Okay, लाइटिंग sir. मॉडिफाइड कर दो इन टर्म्स ऑफ आपने जो वाइड एंगल का पर्सपेक्टिव रखा है। ट्राई प्रोडक्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट में कभी भी वाइड के साथ नहीं जाना चाहिए। डिस्टॉर्शन Okay. जैसे ही दिखा, वी वांट टू परचेज अ रियल शेप, राइट। हम बिल्कुल रियल शेप प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। सपोज दिस इज अ बॉटल, राइट। अब मैं ये देखो डिस्टॉर्शन अगर मैं कैमरे के पास लेके आऊं होगा ना, जी।
there's a kind of distortion. क्या Yes. ऐसा मुझे मिलेगा नहीं ना, ऐसा मुझे नहीं मिलेगा बॉटल ना, नहीं नहीं बिल्कुल मुझे तो नहीं। बॉटल ऐसा मिलेगा, राइट? सो दिस इज नॉर्मल। मैं अगर वाइड करूंगा और क्लोज लेके जाऊंगा और ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू प्रोडक्ट को दे दिया, तो प्रोडक्ट के अलावा बाकी का एरिया क्या होगा, खाली जा रहा है। इफ यू डोंट हैव एनी एक्सेसरीज और काइंड ऑफ थिंग्स, तो ट्राई टू मेक अ रियल शेप एंड द रियल कलर। शेप Okay. भी और कलर भी, हमेशा प्रोडक्ट का जो अपना प्रोमिनेंट कलर है दैट विल बी देयर, एंड व्हाटएवर द प्रोमिनेंट शेप दैट विल बी देयर, एंड वन मोर थिंग, द प्रोमिनेंट पोजीशन होता है हर एक चीज का, राइट? बॉटल कभी ऐसे बैंड हो सकता है क्या? बॉटल नहीं या सर। तो खड़ा होके रहेगा या लेट के रहेगा, राइट? तो कभी भी प्रोडक्ट के बारे में करना, हैंग वाला काम मत दिखाना कि ऐसे टेढ़ा कर दिया 45 डिग्री नीचे कुछ लगा के। जो उसका रियल स्ट्रक्चर है ना, जिस रियल स्ट्रक्चर में रखा जा सकता है उसी स्ट्रक्चर को डिफाइन कीजिए। नॉट कि थोड़ा सा 45 डिग्री एंगुलर दिखने में अच्छा लगता है, बट कभी देखा बॉटल को ऐसे रखा हुआ? अभी ये बस नहीं नहीं सर नहीं। उस पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं करना है कि मैं इस पोजीशन पे रखा हूं। वो क्रिएटिव हो सकता है बट वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। तो कभी प्रोडक्ट का जो रियलिस्टिक अप्रोच होता है उसका उसकी रियल पोजीशनिंग होती है ना? ठीक है सर, ठीक है ओके सर। मेल पे मेरे को एक आधे पॉइंट से आप कर देना, तो मैं जो आपको मैं। वही करूंगा, मैं इंडिविजुअल आपको वो कर दूंगा। ठीक तो है सर, बाकी ठीक है। जिन्होंने नहीं भेजा है आप भेज सकते हैं। दिवाली मनाइए। ओके थैंक यू सर सर मेटल yeah. प्रोडक्ट क्या? शूट करने के टाइम, हेलो सर, या टेल मी। मेटल प्रोडक्ट शूट करने के टाइम कौन सा सरफेस पे रख के शूट करना है, इसका No, कोई no, स्पेसिफिक? it's totally depend upon the product, which kind of product you, which kind of color of those product is। मेटल का मतलब सिर्फ यही नहीं होगा कि सिर्फ एक ही कलर में आएंगे। मेटल के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना, कोई सिल्वर वाला हो सकता है, लिटिल बिट काइंड ऑफ द गोल्डन टाइप में हो सकता है जिसमें कि ग्लॉसीनेस हो, एक गोल्डन होगा जो कि काफी फ्लैट होगा, राइट? तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स आ सकते हैं। अभी जो मैंने आपको दिखाया इसके भी अलग टेक्सचर हो सकते हैं, बट हमेशा बैकग्राउंड ऐसा होगा कि जिससे कि आपका अटेंशन बैकग्राउंड पे नहीं जाए। देयर मस्ट बी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन योर प्रोडक्ट एंड योर बैकग्राउंड, बट बैकग्राउंड ऐसा ना हो जाए कि बैकग्राउंड डोमिनेट करने लगे आपके प्रोडक्ट पे। बैकग्राउंड ऑलवेज विल बी सटल, कि बैकग्राउंड ये लगे कि सपोर्टिंग है ना। वो ये ना लग जाए, सपोज करो मैं इस फोन है ब्लैक है, इसके पीछे रेड या कुछ ऐसा खतरनाक सा कलर लगा दो, ग्रीन लगा दूं, आपका कहाँ जाएगा अटेंशन? बैकग्राउंड पे चला जाएगा। नहीं बट सर, आई एम आस्किंग अबाउट द मटेरियल, मतलब सरफेस का मटेरियल कैसा होना चाहिए, सरफेस का मटेरियल कैसा होना चाहिए? मतलब ग्लास और क्लॉथ के कोई भी ऊपर कोई या भी कोई भी कोई भी हो सकता है। मेटल हो सकता है, ग्लॉसी हो सकता है, मैट फिनिश हो सकता है, एनीथिंग कुड बी। आप कोई भी उठा सकते हैं, बट मेटल कोई भी होगा, आइदर इट विल बी ग्लॉसी और मैट फिनिश, रिफ्लेक्शन उस पे बनेगा ही बनेगा। आप सपोज करो फॉर एन एग्जांपल ना, कोई आपके घर में ग्लास होगा मेटल का, राइट? सपोज ना इफ आई हैव एक मेटल का प्रोडक्ट ये है, दिस काइंड ऑफ सरफेस इज द ग्लॉसी, है ना? ये यस सर, या मेटल ही है, यस सर, शाइन कर रहा है, साइन कर रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहा अब मैं एक दिखाऊंगा जो कि ग्लास होगा, जो अभी मेरे पास नहीं है काइंड ऑफ, तो उसमें इतना ज्यादा साइन नहीं होगा, बट रिफ्लेक्शन इस पे भी बन रहा है ना, रिफ्लेक्शन उस पे भी बनेगा। सो ये उससे डिपेंड नहीं करता कि ग्लॉसी है क्या है। ग्लॉसी है तो ज्यादा दिखेगा उस पे, मैट है तो थोड़ा कम दिखेगा इन टर्म्स ऑफ, बट दिखेगा जरूर, है ना? दोनों पे दिखना है, दोनों पे मेटल का कुछ भी होगा वो दिखेगा, है ना? तो अवॉइड आप नहीं कर सकते कि मैं मैट वाला कर रहा हूँ तो इस पे नहीं बन रहा है, कम बनेगा, थोड़ा सा कम होगा, साइनी वाले पे ज्यादा बन सकता है। इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर। अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू लाइटिंग फॉर इट। ये कर्व है, मुझे लाइटिंग ऐसी करनी पड़ेगी, सोर्स ऐसा कर्व करना पड़ेगा कि पूरे पे ऐसा बने। स्ट्रेट फ्रंटल दूंगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक दोज एजेस। तो कंप्यूटर के लाइट से देखो एजेस बन रही है ना, बट यहाँ पर क्या हुआ, स्पॉट बन गया, यहाँ नहीं बना। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द शेप। सर या एक पर्सनल क्वेश्चन है, जो आपका ये फ्रेम है ना, इसमें